Good evening, all. So after a long session and a day-long session, we have come to the last session, that is the fifth session, which is the ultimate art of wealth creation. And we have this session amongst us by none other than Mr. Varun Malhotra. He's the director of Edge Institute for Financial Studies Private Limited. I would take the privilege to invite Mr. Varun Malhotra to the dais, please. Mr. Varun Malhotra. Varun Malhotra is the director of Edge Institute for Financial Studies and one of India's most dynamic voices in financial education. An alumnus of IIM Ahmedabad and Washington University in St. Louis, he has been instrumental in empowering over 5.5 lakh individuals, including students, professionals, defense personnel, and corporate leaders through his flagship financial literacy awareness program. His engaging sessions simplify the complexities of investing and have been delivered across platforms like BSF Camps, Fortune 500 companies, TEDx, and Udemy. A CFA by qualification, Varun is on a mission to make India financially literate and help individuals achieve true wealth through disciplined long-term investing. I would now like to invite CA Sumit Modi to offer him a memento and a trio on behalf of ACA. So, when I was just searching about Mr. Varun Malhotra, he's a very good teacher and a trainer on wealth creation. And now, without wasting much time, we'll take much of this session time in learning how to create wealth. Please, sir. Check 1 million, 2 million, 3 million. I hope everybody can hear me. This is the way Warren Buffett followers test their mic, because we always talk in millions and billions. And even in the session today, we are going to do that. I think I'm a little confused in terms of what should I cover in the session today, because I have been to Kolkata a few times, and there might be some people who have done the session before. So when I was basically planning for the session today, I was thinking that most of the people would have attended our basic sessions, and I wanted to go a step forward. We do have our intensive program, so I was going to talk about that, but that requires basic understanding of investing, at least the basic understanding that we believe is the basic. टीवी पे तो बड़ा अलग होता है, टीवी तो मुझे पता नहीं आप देखते भी क्यों हैं, जैसे I don't have any television at home, खास तौर पे मैंने CNBC, मनी कंट्रोल, ऐसा कुछ मैंने आज तक कभी इन्वेस्टिंग के लिए कभी यूज ही नहीं किया, मतलब मुझे आज तक समझ भी नहीं पड़ा आपको दिखता भी क्या है, मिलता भी क्या है वहाँ पे. I think the only thing that you get is entertainment, and most of you are in the stock market for entertainment, not for making money. कई लोगों को ये होता है कि गोवा जाके जुआ खेलना महंगा पड़ेगा तो यहीं खेल लो घर बैठे बैठे, तो आप वो करते हैं, बट इन्वेस्टिंग में ये सब चाहिए नहीं होता. तो वेरी क्विक चेक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अवर सेशन? कोई भी सेशन अटेंड किया हुआ है, बेसिक सेशन आपने? ऑल राइट, वेरी फ्यू पीपल. तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज I'll divide the session into two parts. First few, if I have an hour or somewhere around that, so I'll divide the first 30 minutes in revising what we have talked in the awareness programs, which is very important, and then I would want to talk about the current markets. I mean, I generally don't do this quite often. I'm not a social media person. If you see us on social media, that is only because of few people ask us to be on social media, but I'm generally very social media shy, and the reason is I don't think someone can understand investing through reels. जैसे सब जगह हमको बोलते हैं कि 30 मिनट में समझा दो, तो मुझे समझ पड़ता है कि ना आप समझना चाहते हैं, आप सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि चलो कई सेशन बुलाना है किसी को तो बुला लो. तो इन्वेस्टिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो I'll revise the awareness part in the first 30 minutes, and we'll talk about the current market. मुझे क्या लगता है कि आज what is the serious problem in the stock market today, because when you hear our sessions, we are one of the most optimistic people. I mean, we would always say that the next generation will always lead a better life, पैसा बनेगा market में. I'm a very, very optimistic person, but there are few things in the market which makes things very, very concerning for stock market participants, और वो लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, स्पेशली to make it
सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं बता ही देता हूं, बिकॉज अगर लास्ट में हम ज्यादा बात ना कर पाए तो आपको क्लियर होना चाहिए. There is a serious problem in stock markets right now in terms of small caps and mid caps. इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि 5 साल बाद अगर मैं आपको मिलूंगा तो आप में से कई लोगों के स्मॉल कैप और मिड कैप वालों के आंखों में से आंसू आ जाएंगे. मतलब लिटरली आप रो ही पड़ेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ. इतना सीरियस वैल्यूएशन प्रॉब्लम है, और वो वैल्यूएशन प्रॉब्लम बहुत बेसिक 5वीं स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स चाहिए. 5वीं का मैथमेटिक्स. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टिंग में कुछ भी चीज 5वीं ज्यादा चाहिए नहीं. इनफैक्ट मेरे कोई पूछता है कि तुम्हारा सन बड़े होके क्या करेगा, तो मैं बोलता हूं यार इन्वेस्टर तो नहीं बनेगा. इन्वेस्टर के लिए तो 5वीं की पढ़ाई चाहिए होती है. कोई साइंटिस्ट बन जाए, कुछ बड़ा काम कर ले तो अच्छा है. हमारे काम में कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं. इट इज एज एलिमेंट्री एज 5th स्टैंडर्ड. और मैं नंबर से आपको एकदम प्योरली दिखा सकता हूं कि मार्केट में इस टाइम पे कहां गड़बड़ हो गई है और क्या गड़बड़ है. बट बिफोर वी डू दैट, सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग के हमें क्या बेसिक्स एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए. तो लेट मी, I'm not sure if you are able to see the screen. So I don't know if you understand this. Warren Buffett does not invest much in technology. So he is very technologically handicapped. We are one of those Warren Buffett followers कि अगर मुझे कोई गलती से Windows के बजाय Mac का लैपटॉप दे दे तो मैं लेक्चरिंग दे पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ेगा कि करना क्या है. परफेक्ट. तो आई थिंक वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं. And we are going to talk about how a common retail investor can create millions and millions in stock market without requiring any kind of special knowledge, without requiring any help from any financial advisor like me. हम जैसे लोगों का देखिए प्रॉब्लम होता है स्टॉक मार्केट में. 3 तरीके के लोग होते हैं. एक, जिनको पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं पता. जैसे आप लोग, सब लोगों को लगता है कि भाई मुझे क्या सीखना चाहिए पता नहीं है. कई वो लोग होते हैं जिनको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता तो सीखने आए हैं. आप में से कई लोग होंगे. और कई वो होते हैं जिनको पता है कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन 1 घंटा सेशन में तो देना ही है. ऐसे कैसे बोल दें कि हमें कुछ नहीं पता. तो हमको 1 घंटे तक एक्टिंग करनी होती है कि हमें कुछ पता है मार्केट के बारे में. बस ये 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं. तो आपको हम जैसे आदमी से कभी मिलने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट टू मेक एनॉर्मस मनी इन स्टॉक मार्केट्स. एंड हाउ? विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. सो इफ आई हैव टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, in India, there are 2 major stock exchanges, NSE and BSE. Bombay Stock Exchange is a very well-known popular index known as Sensex. What is Sensex? It is a basket, it is an index made up of top 30 companies of India. Now, who decides that these are the top 30 companies? It is mostly decided on the basis of market capitalization. So, we calculate market capitalization of each and every company and then we start ranking these companies based on that. जैसे अगर आज हम देखें तो the biggest company might be HDFC Bank, which has a huge weightage in the index, about 13.7%, which means if HDFC Bank's share price goes higher or lower, it has a huge impact on the index because other companies are relatively smaller. Bigger the company, bigger the impact. Now similarly you have HDFC, Reliance, ICICI and all those companies, and these ranks keep on changing. Why the ranks keep on changing? Because the share price keeps on changing. But what is more important to note here is that not only the ranks change, even the companies change in the long run. What do I mean when I say companies change in the long run? If I ask you which were the best companies of India in 1980s and 1990s, most probably you are going to say Reliance, Tata, Birla, companies that still exist. तो आपका एक प्रॉब्लम होता है सर्वाइवरशिप बायस. आपको वही याद आता है जो बचा है, जो खत्म हो गया है किसी को याद नहीं आता. तो लेट मी रिमाइंड यू 1980s and 1990s which companies were ruling the index. Those were Bombay Dyeing, Oswal Chemicals, DCM Shriram, HMT Ghadiya, Hindustan Motors. These were best companies of India. तो आपके जितने दोस्त हैं जो बोलते हैं मैं सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं, सबसे अच्छी कंपनीज में करता हूं, तो हो सकता है कि आज आप ब्लू चिप करें तो वो अगले हिंदुस्तान मोटर्स हो और आपका पैसा डूब जाए. मतलब इफ यू हैव बॉट in the best companies of India in 1980s and 1990s, you have not made a lot of wealth because many of these businesses have gone out of business or have not done very well. But the index kept on going higher. Sensex फिर भी बढ़ता गया. Why did the Sensex kept on going higher? Because companies which were not doing well, their weightage in the index kept on going lower and they were finally kicked out of the index. और जो अच्छा कर रहे थे वो अपने आप इंडेक्स में ऐड हो गए and if they continue to do well, the weightage keeps on increasing. So Sensex is a self-updating. It is the dynamic basket of top 30 companies. It is not a static basket की companies same हो गई तो यही रहेंगी. It will keep on changing. अगर कल वॉर होगी तो आराम से एलिमिनेशन की कंपनीज इसमें आ जाएंगी. कोविड जैसा होगा तो वो वाली कंपनीज आ जाएंगी. क्या होगा कोई पता नहीं है, बट जो भी कंपनीज आएंगी वो उस टाइम की इंडिया की बेस्ट कंपनीज होंगी.
Like Bombay Stock Exchange has Sensex, similarly National Stock Exchange has a very well-known index called as Nifty 50 based on the same method, market capitalization. The top 30 companies in both the indices are going to be nearly same and the last 20 companies are going to be relatively smaller. वो छोटी कंपनीज के बढ़ने और गिरने से इंडेक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहली 30 कंपनीज से फर्क पड़ता है और वो 30 कंपनीज तो दोनों ही इंडेक्स में क्या है, एब्सोल्युटली सेम. तो इसीलिए when I say Sensex or Nifty, it is one and the same thing. दोनों में कोई फर्क नहीं है, दो अलग अलग कंपनीज हैं तो they wanted to make two different indices and both of them made two different indices. वरना इस सेशन में when I say Sensex or Nifty, it is one and the same thing. Now the first question that every investor should understand is why do we need Sensex and Nifty? तो Sensex और Nifty को अधिकतर लोग बोलते हैं it is a barometer for the stock market. ये stock market का barometer है, it tells you where is the stock market headed and this is where the problem in investing starts. जब आप ये बोलते हैं it is a barometer for the stock market, you start believing that it is important only for people who want to invest in stock markets. People who have never invested, what do they think if market goes higher or lower? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ. ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है. According to us, Sensex and Nifty is not only the barometer for the stock market, it is actually a barometer of your and my life. It is a reflection of how well an average Indian is doing in life. Let us try to understand how. Let us assume there are 100 people in this room. None of you have ever invested in the stock markets, neither do you plan to invest in stock markets. But all of you have a mobile connection. मतलब irrespective of your stock market participation, mobile phone तो सबके पास ही है. अगर सबके पास मोबाइल फोन है, चाहे वो एयरटेल का मोबाइल फोन है, चाहे वो एयरटेल के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, बट इफ एवरीवन हैज अ एयरटेल मोबाइल फोन, यू पे अ मंथली रेंटल टू भारती एयरटेल, which increases the revenue of Bharti Airtel, which in turn will increase their revenue, sales, profit, and if their share price will also go higher in the long run. इसका मतलब in the long run Sensex and Nifty does not go higher or lower when you and I invest in the stock markets. ये CNBC वाले तो मेरे को जहां तक पता है वो यही बताते रहते हैं कि FII ने हटा दिया, DI ने हटा दिया. ये इसका कोई लॉजिक नहीं होता. ये जो भी FII DI की बात करता है मतलब उसको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ आता ही नहीं. इन्वेस्टिंग का एक ही रूल होता है, प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. कितने लोग ये समझते हैं सेंटेंस को? प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है, चाहे FII करता हो, DI करता हो, नहीं करता हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अकेले आदमी है स्टॉक मार्केट में और अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ रही है तो प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. प्राइस सिर्फ अर्निंग से ही बढ़ता है लॉन्ग रन में. ये शॉर्ट टर्म में FII DI जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट अगर FII भी नहीं है मार्केट में, DI भी नहीं है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. बिकॉज वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? आई विल गिव यू द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. शट द डोर एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy. मतलब अगर सब घबरा गए हैं, DI और FII भी घबरा गए हैं, तो पैसा आना बंद हो गया है. तो जिस चीज की वैल्यू 100 रुपए है वो 50 में मिल रही है, आपको लेनी है और इंतजार करना है कि FII DI कब आएंगे. लेकिन कौन सी कंपनी लेनी है? जिसकी अर्निंग्स बढ़ रही है. तो प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. अब मैं ये बता रहा था, इफ in the long run Sensex and Nifty does not go higher or lower when you and I invest, it goes higher when you and I as consumers buy more mobile connections from Bharti Airtel, more houses from DLF, more cars from Maruti, more oil from Indian Oil Corporation. जब मैं और आप इन कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्यादा सामान खरीदते हैं तो इन कंपनीज का रेवेन्यू, प्रॉफिट, शेयर प्राइस अपने आप कहां चले जाता है? ऊपर, विच टेक Sensex and Nifty also higher. So Sensex and Nifty is not only the barometer for the stock market, it is actually a barometer of the consumption capacity of the country और प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंजम्पशन कब करेंगे आप? जब प्रोडक्शन होगी तो ही. अगर कंजम्पशन बढ़ रही है तो कोई तो प्रोड्यूस कर ही रहा होगा. कितना इंपोर्ट करेंगे? बाद में तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. तो इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द कंजम्पशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री और द GDP ऑफ द कंट्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू एवरीवन's mind is, if Sensex and Nifty is a barometer for the stock market, for the economy, Sensex and Nifty is a barometer for the economy, where will the economy be 20 years or 30 years from now? तो जितने लोगों ने सेशन किया हुआ है उनको आंसर पता है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं. What do you think, where will the economy be 20 years or 30 years from now? And why 20-30 years? Because Warren Buffett says the skill and knowledge required to make money in stock markets in the long run is nearly zero. No knowledge, no skill required in the long run. मुझे long run का मतलब नहीं पता था, तो 20-30 years. 3 questions, 3 options. Where will the economy be 20 or 30 years from here? Definitely worse, definitely better, can't say.
तो डेफिनेटली वर्स वाले कौन होंगे? जो बोलेंगे यार कल रात को किताब पढ़ी है नॉर्थ कोरिया वाले के बारे में, न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। कोई बोलेगा नहीं नहीं अभी ये वॉर खत्म हुई, अभी कोविड आने वाला है या कोविड जैसा कुछ आने वाला है। कोई बोलेगा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कोई बोलेगा पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। ये पॉपुलेशन का भी कॉन्सेप्ट कहां से है मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको किसने पहले बता दिया कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है? हमारी तो हम तो अलग जनरेशन के लोग हैं। मेरे जैसे लोग बता रहे हैं कि पॉपुलेशन घटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। आप लोगों को लग रहा है पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम है। मतलब ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि रिप्लेसमेंट लेवल से हम नीचे जा रहे हैं, और वो क्राइसिस से बड़ा कोई क्राइसिस नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि अगर आज 2 लोग मिलके एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो आफ्टर 50 ईयर्स तो अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है 50 रह जाएगी। 50 की पॉपुलेशन रहने का मतलब समझते हैं अब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी सोल्ड, नंबर ऑफ कार हाउसेस दैट कैन बी सोल्ड, नंबर ऑफ टेलीविजन दैट कैन बी सोल्ड। इट विल बी द क्राइसिस दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर। इसलिए हम बहुत लोगों को बार बार बोलते हैं इंडिया का रिप्लेसमेंट लेवल 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जबकि आपका रिप्लेसमेंट लेवल 1.2 2.1 के आसपास आ गया है। Controlling population further can create a crisis that the world has never seen before. Countries गायब हो जाएंगी दुनिया से नेक्स्ट 200, 200, 300 साल में गायब हो जाएंगी। बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं, गायब हो जाएंगी। तो लेकिन हम ये बोल रहे थे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है? हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर। तो हमारी इकोनॉमी कहां होगी? यहां से तो पक्का खराबी होगी। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से हैं? वो बोलेंगे नहीं नहीं यार वरुण, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी, हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पॉपुलेशन की आएगी तो हम इंसेंटिव देंगे बच्चा पैदा करने के लिए, कई कंट्रीज कर रही हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। यहां से क्या होगा? यहां से बेसिकली हम आगे ही जाएंगे। और तीसरा आंसर है कहा नहीं जा सकता, टू कॉम्प्लिकेटेड। वरुण ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। तो आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं यहां से तो पक्का खराबी होगी? एनीवन? कोई भी नहीं? ग्रेट, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक डेफिनेटली बेटर, यहां से अच्छा ही होगा कुछ भी हो जाए? ग्रेट। कितने लोगों को लगता है कहा नहीं जा सकता, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड? तो जितने भी लोग कहा नहीं जा सकता वो हाथ जोर से ऊपर, हाथ खड़ा करें ऊपर। बाकी सब लोग इनके चेहरे भी देख लीजिए, क्योंकि यही है वो लोग ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं। देखिए पढ़े लिखे लोगों का एक निशानी होती है एनालिसिस पैरालिसिस की। पढ़ा लिखे लोगों का ये प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत पढ़ चुके हैं तो उनको लगता है ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो पता नहीं कि क्या होगा। और जितने लोगों ने पहले हाथ खड़ा किया था और हंस रहे हैं कि वो एनालिसिस पैरालिसिस पे, जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था कि जो अच्छा होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, पता उनको भी कुछ नहीं है। उनको बस इतना ही पता है, बचपन से सुना है जो भी होता है अच्छा होता है, तो वो बोल रहे हैं अच्छा ही होगा, आइडिया कुछ नहीं है। But somebody decided to ask this question to Warren Buffett, and the answer that he gave became the foundation of investing in stock market. Somebody asked Mr. Buffett, what do you think, where will the economy be 20 years or 30 years from now? And he said, no matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, the next generation will always lead a better life, always. अंडरलाइन ऑलवेज। किसने बोला इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वॉरेन बफेट बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, लुक एट वेयर द वर्ल्ड इज टुडे आफ्टर दोस हॉरिबल बॉम्बिंग्स। किसी ने बोला व्हाट इफ देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, he might say 1929 great depression, 2008 great recession, look at where the world is today. He keeps on saying no matter what happens, the next generation will always lead a better life. But better मतलब क्या? better spiritually, philosophically, religious नहीं, materialistically better. What does materialistically better mean? मतलब जो भी चीजें हम खरीदना चाहते हैं मोह माया की दुनिया के हिसाब से, जो भी हम खरीदना चाहते हैं, if your ability to consume those things is increasing, your life is getting better. Now what do you want to consume? अगर हम सबके पास पैसा आएगा तो हम क्या कंज्यूम करना चाहते हैं? We want to buy a bigger car, bigger house, more travel, more vacation, branded clothes, more jewelry, XY, more mobile phones, ये सब खरीदना चाहते हैं। Are we as a generation able to consume these things more as compared to the previous generation? आपको क्या लगता है? आर वी एबल टू कंज्यूम मोर ऑफ दीज थिंग्स, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, कार्स, हाउसेस, ट्रैवल, वेकेशन, एज कंपेयर टू योर प्रीवियस जनरेशन? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यू आर लीडिंग अ मच बेटर लाइफ। बट आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये क्या बता रहा है, ये तो वो बता रहा है क्या हुआ है, ये तो हमको भी पता है, ये तो हर एक आदमी को पता है कि हमारी जिंदगी बेहतर है। और जो आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉर हिम द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड, द बिगर इंपॉर्टेंट और द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर? आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर? डेफिनेटली यस, बट व्हाट विल दे कंज्यूम? कार्स और चॉपर्स और रोबोट्स और एआई? तो कई लोग बोलेंगे कार्स, रोबोट्स, एआई। मेरे से कोई पूछेगा तो बोलूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 50 years ago could I have guessed that today all of you would want to buy a mobile phone? क्या मैं गेस कर सकता था? पॉसिबल ही नहीं था, because the word mobile phone was not even coined, नाम ही नहीं था मोबाइल फोन। वैसे ही 50 years down the line what will people consume? I don't have a clue.
that will depend upon the innovations, requirements of that time and things that would have innovations जो होंगे. But whatever they want to consume, their ability to consume will definitely be higher. If they would be consuming more, अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो द टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 और टॉप 100 और टॉप 500 और लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अगर लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो कोई तो प्रोड्यूस कर ही रहा होगा. कौन कर रहा होगा? पहली बड़ी कंपनीज कौन सी होंगी पता नहीं. जो भी लोग कंज्यूम करना चाहते होंगे उससे रिलेटेड कंपनी कोई पहले टॉप 50 कंपनीज में होंगी, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होंगी. इफ दे वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर, इसका मतलब उस टाइम की टॉप 50 कंपनीज वुड हैव हायर रेवेन्यूज एज कंपेयर टू टुडेस टॉप 50 कंपनीज. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? इसका मतलब उनका रेवेन्यू आज के टॉप 50 कंपनी से ज्यादा होगा, उनका प्रॉफिट आज के टॉप 50 से ज्यादा होगा, उनका शेयर प्राइस आज के टॉप 50 से ज्यादा होगा. मतलब उस टाइम पे सेंसेक्स और निफ्टी की जो बास्केट होगी उसकी वैल्यू आज के सेंसेक्स और निफ्टी की बास्केट की वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा. So if you don't know anything about investing, in the awareness program we have talked about this, कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो घर जाके बस इंडियन इकोनॉमी पे बेट करना है और किसी से पूछना ही नहीं है. कल से कोई वरुण सेशन में आएगा, सेशन अटेंड ही नहीं करना है. वरुण तो आके ऐसे 1 घंटा कुछ बोलेगा. आपको घर जाके समझना है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ. इसका मतलब आई शुड बेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में बेट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि सेंसेक्स निफ्टी नाम का इंडेक्स खरीदो और लंबे समय तक होल्ड कर लो. अब मैं अपने फादर को आज से 25 साल पहले ये बात बता रहा था. 25 साल पहले मुझे आज भी याद है, मैं ड्राइंग रूम में बैठ के उनको बता रहा था, पापा कुछ नहीं आता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब जीरो हो जाते थे, जुआ खेलने वाले सब जीरो हो ही जाते हैं. तो जब जीरो होते थे सारा गुस्सा मेरे पे निकलता था घर पे, क्योंकि मैं ही स्टॉक मार्केट की बातें करता था, इन्वेस्ट तो करता नहीं था, तब पैसा था नहीं और पेरेंट जो करते थे वो जीरो हो जाते थे. तो एक दिन मैंने अपने फादर को बोला, पापा कुछ नहीं आता तो सेंसेक्स निफ्टी खरीद के छोड़ दो. लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस इतनी आसानी से मान तो जाते नहीं है. ऐसा थोड़ी ना होता है. जैसे आप में से कितने लोग आज घर जाके सब कुछ बेच के, घर बार बेच के, जैसे अब घर की बात चल रही थी, घर बार बेच के कितने लोग सेंसेक्स निफ्टी खरीद लेंगे? हाथ रेज करिए. कितने लोग सेशन के बाद? कोई भी नहीं. मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि 15 साल पहले जब मैंने सेशन चालू किया था, माय मदर वाज वेरी वरीड. मेरी मदर ने बोला, वरुण तू क्या कर रहा है यार, तेरे को समझ पड़ गया है कि पैसा कैसे कमाना है, तो बाकियों को क्यों बता रहा है? तो मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला तो सब पैसा कमा लेंगे, सब कमा लेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस ही क्या रह जाएगी? तो मैंने बोला बात तो एकदम सही है. तो मैं भी घबरा गया. फिर मैंने 1-2 साल लेक्चर दिए. फिर मेरे को समझ पड़ा लोग सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं है और पैसे अलग देते हैं. तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी चिंता मत करो, सब आ रहे हैं, पैसे हमको दे रहे हैं सुनने के. करेंगे भी नहीं, वो करेंगे भी नहीं, सुनेंगे, मजे ही मजे. हमारे पास पैसे, हम उसको भी इन्वेस्ट करेंगे. इनमें से कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा, क्योंकि कर नहीं सकता. आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस की प्रॉब्लम है. तो मेरे फादर भी उन्हीं में से थे. मेरे फादर ने बोला ऐसे कैसे मान जाएं, जो तुम बोल रहे हो सही है, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोगों को प्रूफ चाहिए होता है. तो मैंने उनको बोला, पापा क्या प्रूफ दे दूं? मेरे फादर ने बोला, गिव मी हिस्टोरिकल डेटा. आईआईटी वाले हैं, वो आईआईटी वाले इंजीनियर जो होते हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे ही अटके रहते हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, कहीं तो इस्तेमाल करना ही है, वरना पढ़ाई का फायदा क्या है? तो मेरे फादर ने बोला हिस्टोरिकल डेटा दो. तो मैंने बोला, पापा आप दुनिया की किसी कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट उठाइए, हर डॉक्यूमेंट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस. सिर्फ हर जगह लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में. बाकी सब छोटे छोटे में लिखा होता है, वो तो आपको दिखता भी नहीं है क्या लिखा हुआ है. लेकिन जो बड़े बड़े में लिखा है वो तो आपको समझ पड़ नहीं रहा है, कि वो नहीं देखना है. लेकिन मेरे पापा ने बोला ये सब ठीक है, मुझे फिर भी हिस्टोरिकल डेटा चाहिए. तो मैं आई गेव हिस्टोरिकल डेटा टू माय फादर. आई टोल्ड हिम, टुडे इफ आई हैव टू टेल यू, टुडे सेंसेक्स टुडे इज ट्रेडिंग एट व्हाट? 83,000, 84,000 हो गया. ये थर्सडे का डेटा है, फ्राइडे को और थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 84,000. It has reached 84,000. It started with the base value of, लिखा हुआ है, in 1979 with the base value of 100. From 100 it has reached 84,000. It has gone up by 840 times. 840 times in last 46 years. इसमें पूछना क्या है कि पैसा कहाँ लगाना है? अभी सेशन पे बात चल रही थी, प्रॉपर्टी लगानी, ये लगानी, मतलब पूछ क्या रहे हैं यार, डेटा तो है यहाँ पे. ये 840 टाइम्स का रिटर्न है. उसके बाद भी लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इसलिए मैं बोलता हूं क्या कर सकते हैं, सब गरीब ही रह जाएंगे, हम क्या करें? मतलब हम तो बता ही रहे हैं. इनफैक्ट हम तो कई सेशन में बोलते हैं कि वो बिल गेट्स बार बार बोलता था, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक. इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक. इफ यू डाई पुअर, स्पेशली आफ्टर दिस क्लास, इट इज योर मिस्टेक. मतलब मुझे पता नहीं इसमें आप क्या गड़बड़ कर सकते हैं. इन्वेस्टिंग की दुनिया में गड़बड़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है. मतलब इफ यू वांटेड 840 टाइम्स रिटर्न, दिस वाज योर बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार था आपका. ये
बीइंग एन इंडियन इकोनॉमी हैज गॉन अप बाय 840 टाइम्स। अगर आपको 840 टाइम्स करना था, सेंसेक्स निफ्टी खरीद के होल्ड करना था बस। इसके बीच में केतन पारिक स्कैम हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, कारगिल वॉर हुई, ईरान इजराइल हुआ, पैलेस्तीन का सब कुछ क्राइसिस जो तो हमने बात कर दी, पैलेस्तीन का क्राइसिस हुआ, रशिया यूक्रेन हुआ, सब ट्रंप आया, ट्रंप गया, फिर ट्रंप आया, सब कुछ हुआ। अगर इस क्राइसिस में कहीं पर भी आप घबरा के आपने बेच दिया होता तो काम खत्म हो गया होता। अगर आप घबरा के नहीं बेचा है आपने और होल्ड किया है तो योर मनी हैज गॉन अप बाय 840 टाइम्स। और किसने बेचा है घबरा के? जो सीएनबीसी देखता है। जो नहीं देखता उसको पता ही नहीं लगा क्या हुआ है। बाकी लोगों को रोज पता लग रहा है आज यहां से मिसाइल चल पड़ी है, फिर वो बोल रहे हैं बीच में 2 मिनट बाद गिरने वाली है। इतना भी बता रहे हैं टीवी वाले तो आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिसाइल गिर भी जाए तो भी नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। इनफैक्ट कई, मैं आऊंगा क्वेश्चन लिख ले, इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं वॉर ज्यादा हो गई तो याद रखिए मेरे कई दोस्त हैं, आप में भी बहुत लोग होंगे, मेरे कई दोस्त हैं, मैं बहुत पीस लविंग आदमी हूं, आप बोल सकते हैं थोड़ा लिबरल टाइप का आदमी हूं, तो मेरे कई दोस्त बोलते हैं यार पाकिस्तान के साथ हो ही जाना चाहिए। तो मैंने बोला मतलब, बोला यार बस खत्म करो यार, अब बहुत हो गया। तो क्या होता है कई बार ना, जब बहुत सालों तक वॉर नहीं होती ना तो लोगों को भूल जाते हैं कि क्या होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वॉर ना हो तो एक बार हो ही जानी चाहिए। जब हो जाएगी ना फिर आप वो गाने गाएंगे कि आंख में भर लो पानी, उसके बाद फिर आप 40-50 साल शांत हो जाएंगे। तो एक्चुअली बहुत जरूरी होता है बीच बीच में वॉर होना, ताकि बंदों को समझ पड़ जाए कि वॉर से होता क्या है। जब 50 साल तक कंट्री ने वॉर अवॉइड की है, इसीलिए आपको बड़े मजे से आ रहे हैं कि यार मजा तो आ ही नहीं रहा लाइफ में, कि कुछ बॉम्ब वॉम्ब तो हो नहीं रहा है, और आपका घर भी दूर है बॉर्डर से, तो और भी मजा आता है आपको तो, क्योंकि जिसका पास है उसको फिर भी डर लग रहा होता है, आपको तो डर भी नहीं लगता है। लेकिन हमने बोला 840 टाइम्स, इसके लिए कोई दिमाग नहीं, कोई स्किल नहीं। चेरी क्या है इसके ऊपर, चेरी ऑन द टॉपिंग क्या है इस पे, सुनिए। द टैक्स दैट यू हैड टू पे ऑन दिस टिल 2018, द गेन दैट यू हैव मेड इज 0, नो टैक्स। इसके अलावा डिविडेंड इनकम अलग मिली है, हर साल डिविडेंड इनकम मिल रही है 1.5 से 2%। टैक्स दैट यू वर पेइंग ऑन डिविडेंड वाज 0 2018-19 तक। टैक्स 0, दिमाग 0, काम 0, कुछ नहीं, बस सेंसेक्स निफ्टी खरीदो और छोड़ दो। फिर मैंने अपने फादर को ये बताया तो मेरे पापा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने बोला क्यों पापा 840 टाइम्स? उन्होंने बोला यू आर सेइंग 46 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया होता तो। If for such a long period of time I would have invested my money in a bank FD, even bank FD would have created lot of money. तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि आपको लगा मार्केट क्या है बहुत रिस्की, और आपने बैंक में रखा, तो अज्यूमिंग बैंक ने आपको साल का 11% पर एनम रिटर्न दिया, शायद इतना दिया नहीं बट मान लेते हैं 11 दिया ऑन एन एवरेज लास्ट 46 ईयर्स में, कभी 12-13 भी दिया, कभी 5-6 भी दिया। ऑन एन एवरेज अगर 11 दिया, उस पर 30% टैक्स भी, उस पहले तो टैक्स रेट भी ज्यादा होता था बट 30 भी मान लेते हैं, तो हाथ में कितना आ गया 8%। एवरीबॉडी इज विद मी ऑन दिस। 8% के हिसाब से कितने साल में पैसा डबल हो जाता है? द रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, 72 डिवाइडेड बाय 8% इज 9, मतलब रफली टेक्स अबाउट 9 years टू डबल योर मनी एट दैट रेट। तो हिसाब लगा लीजिए 100 रुपीज इन द बैंक आफ्टर 9 years वुड हैव बिकम 200, 18 years 400, 800, 1600, आज 45-46 इयर्स बाद पैसा कितना गुना बढ़ गया होता है? एक बार बोल दीजिए मेरे लिए। मनी वुड हैव गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स? 32 टाइम्स। मनी हैज गॉन अप हियर बाय 840। मैंने पापा को बोला पापा इसमें क्या आप आर्ग्यू करोगे, आर्ग्यू के लिए रह क्या गया है? तो मेरे पापा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने बोला क्यों पापा? उन्होंने बोला तू यही बोलते जाता है रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, रिस्क की तो बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त कैसीनो में जाए और जैकपॉट जीत जाए तो क्या आप ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसीनो का रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा होता है? नहीं बोलते आप। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट इन कैसीनो इफ यू मेक मनी यू माइट मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ यू लूज 100%, और अगर 100% लूज कर दिया तो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न कितना ही ज्यादा क्यों ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये 0 हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। तो बताइए क्या सेंसेक्स निफ्टी कभी 0 हो सकता है? कैन सेंसेक्स निफ्टी एवर बिकम 0? पॉसिबल ही नहीं है। वॉर चल रही होगी तो वॉर की कंपनीज आ जाएंगी, आर्म्स एंड एम्युनिशन कंपनी आ जाएगी, कोविड चल रहा होगा तो फार्मेसी वाली आ जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट चेंज होगा नहीं होगा क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी चेंजेस के हिसाब से कंपनी चेंज होएगी, लेकिन 0 नहीं हो सकता। सो सेंसेक्स निफ्टी डज नॉट हैव द रिस्क ऑफ गोइंग डाउन टू 0। फिर भी इसका रिटर्न ज्यादा है, लेकिन किसी भी चीज का अगर रिटर्न ज्यादा है तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होना ही चाहिए। 0 होने का रिस्क नहीं है। तो कौन सा रिस्क है? द रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव का रिस्क। ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता सर,
100 से लेके 84,000 तक जो जर्नी है, दैट हैज नॉट बीन अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज बीन वेरी वेरी वोलेटाइल, और वो वोलेटिलिटी को आप मार्केट से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर आपने वो वोलेटिलिटी हटा दी तो जीरो होने का रिस्क क्या है, जीरो होने का रिस्क क्या है, जीरो, और अगर वोलेटिलिटी का रिस्क भी ना हो तो ये रिस्क फ्री हो गया। अगर ये रिस्क फ्री हो गया तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, बैंक रेट ही हो जाएगा। अगर बैंक रेट से ज्यादा है, मार्केट रिटर्न हमेशा बैंक से इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसका मार्केट की वोलेटिलिटी एफडी से क्या होने वाली है, ज्यादा, तो ये उतार चढ़ाव बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। उसके लिए सबसे सिंपल रूल है, जो भी पैसा 5 साल में चाहिए वो स्टॉक मार्केट में कभी होना ही नहीं चाहिए। ये बस यूट्यूबर वालों का होता है, जो बोलते हैं आज सुबह डाल दो, कल निकाल लो, परसों डाल दो, फिर निकाल लो। इससे बड़ा झूठ बोला ही नहीं गया है मार्केट में, बहुत बड़ा झूठ है। याद रखिए, इनकम दो तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ देना, ये कौन सी इनकम है, पैसिव। चिल्ला चिल्ला के आपके सामने बोलना कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो कौन सी इनकम है, एक्टिव। एक्टिव इनकम का कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है। जितने भी आपको यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी बेचारे वीडियो बना के ही पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा बनाने के लिए सुबह उठ के काम करना ही पड़ता है, दवाई बनानी ही पड़ती है, ब्रिज बनाना ही पड़ता है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज देने ही पड़ते हैं। ये होती है पैसिव इनकम, इसका एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। तो जितने लोग अपने काम के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक्टिव इनकम के बीच में स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, उनके लिए लिख के रख लीजिए, दो बेचारे बर्बाद होने वाले हैं, ना एक्टिव रह जाएगी ना पैसिव, क्योंकि काम पे ध्यान नहीं दे रहे, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी गया काम भी, साथ में ट्रेडिंग में वैसे ही कुछ नहीं होने वाले, एक दिन तो जीरो होने ही वाले हैं, तो ये सब तो बंद होने ही वाले हैं। आप में से बहुत लोग बैठे हैं जो बेचारे कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं अब मेरा क्या होगा, और आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। कई लोगों का तो प्रॉब्लम क्या, इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोलने के बाद भी, समझाने के बाद भी उनको समझ नहीं पड़ रहा होता है। अभी आप में से कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो घर जाके कल भी यही करने वाले हैं, सुन तो रहे हैं। आपको पता है क्यों करने वाले हैं? अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, आपको एक बीमारी हो चुकी है, आपको पता नहीं है बस। You have been, if you go to a doctor, you will be diagnosed by addiction. आपको एडिक्शन हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से काफी लोगों को तो पता भी है कि मैं जीरो होने वाला हूं, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि रोक ही नहीं पा रहे हैं। और इससे बढ़िया एडिक्शन कुछ होता ही नहीं है। इसमें मेरे को तो कई लोग बताते भी है, मैं रिटायर हो गया हूं, अब दिल लगाने के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो मेरे को लगा यार क्या मतलब दुनिया, मैंने बोला सर अगर दिल लगाना है तो गोवा जाके गैम्बलिंग ही करके आ जाओ, भाई जुआ खेल के आ जाओ, दिल भी लग जाएगा, कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये बहुत महंगा एंटरटेनमेंट है। अभी मैंने आपको बताया इसमें रिस्क क्या है, वोलेटिलिटी का, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन वोलेटिलिटी और रिस्क को एक आम आदमी कैसे हटा सकता है? एक आम आदमी जिसको कुछ नहीं आता वो एसआईपी कर देता है। भाई कुछ नहीं आता तो हर महीने इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। अगर कभी आपने पीक पे इन्वेस्ट किया, कभी बॉटम पे किया, अगर आप लंबे समय तक हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर एक्यूमुलेशन विल बी एट एन एवरेज प्राइस, एंड इफ यू एक्यूमुलेट एट एन एवरेज प्राइस, योर फेयर शेयर ऑफ रिटर्न, यू विल गेट योर फेयर शेयर ऑफ रिटर्न, जो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न है। इसलिए लोग एसआईपी करते हैं कि पीक पे सारा इन्वेस्ट ना हो जाए। लेकिन टीवी वाले ये बताते तो रहते हैं कि एसआईपी कर दो, एसआईपी कर दो, ये बताना भूल जाते हैं कि एसआईपी किस में कर दो। क्योंकि अगर किसी ने लगातार 5 साल से बिना रुके, बिना थके, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ किंगफिशर स्टॉक में एसआईपी की होती तो वो तो खत्म हो गया होता। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एसआईपी करनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि एसआईपी उसमें करनी है जो जीरो हो नहीं सकता। सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आज से मेरे को और आपको इस रूम में बैठ के कसम खानी है, बाहर निकलने से पहले, बाहर निकलने से पहले प्लेज लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स पे कि कल से सेंसेक्स निफ्टी में हम एसआईपी करेंगे, हर महीने करेंगे। और अगर सेंसेक्स निफ्टी गिरेगा तो खुशियां मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, अपने दोस्त को बोलेंगे मजा ही आ गया यार, कल ही इन्वेस्टमेंट चालू किया, आज ही मार्केट गिर गई। जब तक आपको गिरने पे मजा नहीं आएगा तब तक आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। क्यों? डेटा इज वेरी क्लियर, सबको ही पता है वो डेटा, आपने ध्यान ना दिया वो अलग बात है। डेटा इज वेरी क्लियर। अगर आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, यहां स्टार्ट करते हैं 500 500 500, तो आपने 500 रुपए यहां पर भी कर दिए होंगे जनवरी 2008 में, जब मार्केट ने 21,000 का क्या बनाया, पीक बनाया। फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, 500 डालते डालते गए, आपने यहां पर जनवरी 2009 में भी 500 रुपीज डाल दिए। कौन से लेवल पे? 8,000 के लेवल पे। आपको तो नहीं पता है बॉटम है, आपको नहीं पता है पीक है, आप बस करते गए करते गए। आज मार्केट 84,000 पे आ गई है। बताइए ज्यादा फायदा कौन से 500 रुपए में हुआ? इसमें क्या डाउट है? नीचे 8,000 वाले में 500 में हुआ, या ऊपर 21,000 वाला जो 500 रुपए डाला है वो अभी 4 गुना ही हुआ है, नीचे वाला जो है वो 10 गुना हो गया है। मतलब गिरने वाले पे एसआईपी करने में ज्यादा फायदा हुआ है। इसका मतलब अगर आज आपने एसआईपी स्टार्ट करी और कल मार्केट गिर गई तो दोस्त को जाके ताली देनी है, बोलना है मजा आ गया यार, कल ही चालू किया आज ही गिर गई।
जब तक आपको गिरने पे खुशी नहीं होगी तब तक आप इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको गिरने पे ही खुशी होनी चाहिए, बढ़ने पे दुख होना चाहिए, क्योंकि अगली एसआईपी जो आप डाल रहे हैं उसका रिटर्न क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये तो हमने बात करी कि सेंसेक्स निफ्टी में डाल दो पैसा बन जाएगा। अब आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सेंसेक्स निफ्टी लेते कैसे हैं, या कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं बहुत अमीर बन सकता हूं बाय बाइंग सेंसेक्स एंड निफ्टी, इज इट इनफ, इज इट ऑल दैट आई नीड, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कैन यू बिकम वेरी रिच बाय बाइंग सेंसेक्स एंड निफ्टी? इसको आंसर करने के लिए क्या देखते हैं, जो रिच लोग हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और हमारे हिसाब से रिच कौन है, हम तो बफेट फॉलोअर हैं, तो हमारे हिसाब से रिच मतलब कौन है, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर के पास कितना पैसा है, किसी को आइडिया है इस टाइम पे? $160 बिलियन लाइफ टाइम में। $60 बिलियन चैरिटी में दे चुके हैं, जा चुका है। $60 बिलियन अब चैरिटी में नहीं दिए होते और वो स्टॉक्स उनके बढ़ रहे होते, तो आज कैलकुलेट किया जाता है कि उनकी नेटवर्थ होती 370 से $400 बिलियन, मतलब रिचेस्ट और सेकंड रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट वो अभी भी होते। बट ही डिसाइडेड टू गिव हिज मनी। कल भी उन्होंने, कल आज भी मेरे ख्याल से कल रात, कल का दिन या आज सुबह he has given another $6 बिलियन वापस। वो ऐसे 6 बिलियन करके वो बोल रहे हैं। मैं फाइनली डिसाइड हुआ था कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था कि सब कुछ चले जाएगा, वॉट एवर यू मेक फ्रॉम द सोसाइटी गोज बैक टू द सोसाइटी। बट उनके पास आज अगर 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर होते तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के लिए उन्होंने किया। तो let us study how did Warren Buffett become so rich. To understand, we are going to see his rate of return. His rate of return मतलब Berkshire. Everybody understand Warren Buffett's company's name is Berkshire. So whatever money he has made through Berkshire's gain. So he shows in his letters to shareholders every year's rate of return from the year 1964, जो 65 है वो 64 से 65 है, from the year 1964 to every day, हर साल का रिटर्न दिया है 49%। फिर पैसा उनका क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर 13, 77, 19, -4, 80, 81, -2.5, -48.7। These are very interesting numbers. इन्वेस्टिंग के दुनिया के भगवान, he was down by 50%। कितने लोग समझते हैं, जो समझते हैं हाथ रेस कर दीजिए। इन्वेस्टिंग के दुनिया के भगवान was down by 50%। इसलिए वो बार बार लोगों को बोलते हैं, if you can't see your portfolio going down by 50% without a heart attack, stock market is not the right place for you, क्योंकि ये तो होने ही वाला है। बट अगर आई थिंक आई वुड मैंने चार्जर दिया था, जो टेक वाले हैं, अगर आपका चार्जर एक दिया होगा इसको लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हमने को ये पता लगा कि वॉरेन बफेट बनने के लिए ये रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। नाउ लेट अस सी इफ यू हैव इन्वेस्टेड लाइक वॉरेन बफेट, हाउ मच मनी वुड यू हैव एक्यूमुलेटेड। ये देख लीजिए, ओवरऑल गेन फ्रॉम 1964 टिल 2024, आई एम नॉट श्योर लास्ट रो को दिख रहा है कि नहीं, ओवरऑल गेन फ्रॉम 1964 टिल टुडे इज हाउ मच। एक बार नंबर पढ़ लीजिए, अच्छा लगता है नंबर पढ़ के, एक बार नंबर पढ़ लीजिए, जरूरी है, एटलीस्ट घर वालों को ही बताइएगा। 5.5 मिलियन %। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे मुंह से निकल गया तो भगवान है, तो उन्होंने अपने लेटर्स में समझाया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बोला लेकिन लग रही है बड़ी बात, दिख ही रही है 5.5 मिलियन। उन्होंने बोला टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्डिनरी दिस रिटर्न इज, don't look at my overall return, look at my annual return, the compounded annual gain. The compounded annual gain is from 1964 till today, annual return is 19.9%। मतलब इन्वेस्टिंग के दुनिया के भगवान का रिटर्न कितना है, 20% पर एनम। आपके यूट्यूबर्स का कितना है, दिन का 20%। वो ये भगवान बता रहे हैं कि मेरा 20% साल का है। तो आपने बोला फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, और 20% का कौन सी करेंसी में, यूएस डॉलर में। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इफ समबडी हैज टू बिकम एज रिच एज वॉरेन बफेट, विल 20% रिटर्न बी इनफ इन इंडिया? No, why? Because Indian rupee has depreciated by 4 or 5% every year. How many of you understand this? Rupee has depreciated. So if you wanted to make Warren Buffett kind of return in India, your return should not have been 20%, should have been 24%. 4% ज्यादा, क्योंकि रूपी डेप्रिसिएशन को केटर करना है। मतलब क्या पता लग गया, सेंसेक्स निफ्टी खरीदे तो क्या हमारा रिटर्न 24% पर एनम हो सकता है? क्योंकि साल का 24% बन गया तो कौन बन जाएंगे हम, वॉरेन बफेट। अब सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न कितना है, यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए, सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न झूठ कैसे दिखाया जाता है। मेरे जैसे लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम ऐसे प्रूव करते हैं। हम बोलते हैं अगर मार्च 2020 को आपने इन्वेस्ट किया होता, जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे डाली थी,
वहां कर दिया होता तो आपका रिटर्न साल का 24% पर एनम है। लेकिन इसमें बताइए गलती क्या है, आपने बॉटम से कंपेयर कर दिया। अगर आप बॉटम से करेंगे तो रिटर्न क्या दिखने वाला है, ज्यादा। कई लोग फिर बोलेंगे अगर 2008 लीमन क्राइसिस वाले दिन कर दिया होता तो रिटर्न बहुत बढ़िया होता। फिर कई तो हद ही कर देते हैं, अगर 2001 वाले पीरियड में जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, पहला प्लेन टकराया था, दूसरा टकराने वाला ही था, तभी कर दिया होता तो रिटर्न बहुत ही बढ़िया होता। आपने नोटिस किया क्या झूठ चल रहा है यहाँ पे, बॉटम से कंपेयर कर रहे हैं। बॉटम से करेंगे तो क्या दिखने वाला है, अच्छा। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये भी तुले हुए हैं बताने के लिए कि सेंसेक्स निफ्टी बेकार है, इससे अच्छा तो गोल्ड ही है। भाई जिसकी हिस्ट्री इतनी सी है कि बस 15-20 साल की हिस्ट्री है, वो बोल रहा है अरे क्या गोल्ड, क्या बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट क्या है। वो कैसे प्रूव करता है, वो ऐसे प्रूव करता है, अगर 2008 वाले दिन पीक पे इन्वेस्ट किया होता तो कोई खास रिटर्न नहीं, इतना तो गोल्ड ने भी दे दिया है, गोल्ड ने ज्यादा ही दे दिया है। फिर खराब प्रूव करना है तो अगर 2001 में इन्वेस्ट किया होता मार्केट के पीक पे तो फिर तो इसका पीपीएफ जितना रिटर्न है, कोई खास है ही नहीं। आपने नोटिस किया क्या झूठ चल रहा है, आप पीक से कंपेयर कर रिटर्न क्या दिखने वाला है, कमी दिखने वाला है। इफ यू वांट टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ बाइंग एट द बॉटम एंड इफेक्ट ऑफ सेलिंग एट द टॉप, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक एट द रिटर्न ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बहुत लंबे पीरियड का रिटर्न देखेंगे तो टॉप एंड बॉटम पे इफेक्ट, इन्वेस्ट करने का इफेक्ट क्या है, खत्म हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी, 100 से आज कितना हो गया है, 100 से आज 84,000, कितने सालों में, 46 ईयर्स में। तो क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल गया है, कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर आप गए और यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, हियर इट इज, यहां पे लिखिए इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 46, पीएमटी 0, स्टार्टिंग मैंने डाले थे 100 रुपीज, टुडे इट हैज बिकम 84,000, द CAGR इज अबाउट 16% पर एनम, प्लस डिविडेंड 1.5%, 2% का डिविडेंड जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18% पर एनम। मतलब सेंसेक्स निफ्टी खरीदा होता तो लास्ट इतने सालों में रिटर्न होता 18% पर एनम। वॉरेन बफेट बनने के लिए कितना चाहिए था, 24% पर एनम। तो क्या सेंसेक्स निफ्टी खरीद के आप वॉरेन बफेट बन सकते थे, नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट बनने के लिए 24 चाहिए, यू हैव गॉट 18, यू हैव बीन बिहाइंड 6%, 6% बिहाइंड फॉर 1 or 2 years will not make much of a difference, but 1 or 6% behind for 50-60 years will make enormous difference। वॉरेन बफेट क्या 300 बिलियन डॉलर होंगे, आपके पास $1 बिलियन होगा, इतना गैप क्रिएट हो जाएगा। बट द अदर क्वेश्चन इज कि सेंसेक्स निफ्टी खरीद के if I would have compounded my wealth at 16, 17, 18%, I would not have become Warren Buffett kind of rich, but would I have become rich? क्या मैं अमीर बन जाता? अगर मेरी और आपकी वेल्थ कल से 15-16% पे पूरी वेल्थ, मेरी और आपकी पूरी जायदाद, पूरी नेटवर्थ 15-16% पे कंपाउंड होने लग जाए तो क्या मैं और आप अमीर बन जाएंगे? बहुत अमीर बन जाएंगे। कितने? मैंने वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उस सेशन में नंबर्स भी दिखाए थे। वेरी क्विकली नंबर्स को दिखाते हैं, फिर आज की करंट मार्केट पे जो लोग पहले कर चुके हैं उनके लिए एक कदम आगे भी जाएंगे। जो इस चीज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो मैंने 3-4 सिंपल तरीके बताए थे। सबसे सिंपल तरीका बताया था उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या खुद बहुत यंग हैं, जैसे 20 साल के बच्चे हैं। अगर समझिए 20 साल की उम्र में आपने रूल डाल दिया कि कोई भी बच्चा फैमिली में 20 साल का होगा, पहले वो खर्चा नहीं करेगा, पहले वो कमाएगा। या तो कैफे कॉफी डे में काम करके कमाएगा, बरिस्ता में काम करके कमाएगा, स्टिचिंग करके कमाएगा, ट्यूशन देके कमाएगा, खर्चा नहीं कर सकता। पहले 50,000 जोड़ने, 50,000 के बाद ही खर्चा होगा लाइफ में। इसके अलावा ये पहला रूल है हमारी फैमिली का। 50,000 अगर आपके बच्चे ने इन्वेस्ट कर दिए पैसा कमा के 20 की एज में, और गलती से अगर ये 18% पे कंपाउंड होते रहा, प्लानिंग करते हुए हम 15 लेते हैं और मैं दिखाऊंगा 15 क्यों लेते हैं, बट यहां पे मिला कितना है, 18। If 18% money is being compounded at 18% per annum for how many years? 40 years. The kid is going to retire after 40 years. 1 से स्टार्ट कर दूंगा तो 41 तक जाऊंगा, 0 से स्टार्ट करता तो 40 तक जाता, इसलिए 41 तक जा रहा हूं। Anybody wants to guess? 50,000 invested once. 50,000 invested once, not every year, not every month, once, एक बार invested once for at 18% per annum for 40 years. This number becomes how much? This number is an astonishing 3.75 crores. मतलब जितने लोगों को रिटायरमेंट पे 3.75 करोड़ चाहिए, आज कितने से स्टार्ट करना है? 50,000 रुपए से। कई लोगों ने बोला हमारा तो होगा ही नहीं 3.75 करोड़ से, बहुत खर्चे हैं हमारे, तो हमने बोला 37.5 करोड़ से हो जाएगा। लोगों ने बोला शायद, कई लोगों ने बोला हाँ, कई लोगों ने बोला ना। जिन्होंने हाँ बोला उनके लिए आंसर है
इफ यू वांट 3.75 तो 50,000 से स्टार्ट करना है। इफ यू वांट 37.5 करोड़ कितने से स्टार्ट करना है? 5 लाख लग जाइए। पूरी इंजीनियरिंग, पूरा ग्रेजुएशन, पूरा बीकॉम, कॉलेज खत्म होने तक 5 लाख रुपए या तो कमा लेने हैं या बचा लेने हैं या कंबाइन करके इकट्ठे कर लेने हैं। और एक बार इकट्ठे हो गए इन्वेस्ट करके, अब जो भी पैसा महीने के आता है उससे घूमना है, गाड़ी खरीदनी है, घूमना है, फोन खरीदना है, जो करना है करो, क्योंकि रिटायरमेंट क्या हो गया है? सिक्योर। अब कई लोगों ने बोला मेरे छोटे बच्चे उनका भी सिक्योर करना है, तो हमने बोला तो बहुत ही सिंपल है। जब भी घर में बच्चा पैदा हो, हमने अपने घर में रूल में 25 साल पहले मैंने रूल बनाया था। तो 25 साल पहले मुझे बहुत हेट मिलती थी घर पे, फिर अब सब प्यार करते हैं नेचुरली, क्योंकि पैसा तो होता ही है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो लोग, मैं तो घर वालों को बताता हूं, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं माँ बाप का प्यार सच्चा होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, पैसा कमा के देखिए आप, माँ बाप का प्यार भी बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये किसी को डाउट हो तो निकाल दीजिए मन से, कोई नहीं, सब एवरी, मतलब जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को 25 साल पहले इतना डांटा जाता था, मेरी दादी बोलती थी कि वरुण से कोई नहीं मिलेगा। एक ही जुआरी पैदा हुआ हमारे घर में जो जुआ खेलते रहता है रोज स्टॉक मार्केट में। आज सबको बोला जाता है, कोई कहीं से फ्लाइट ले रहा हो, कहीं और जा रहा हो, इंडिया में हॉल्ट लेके वरुण से 2 घंटे मिलके ही जाना है कि भाई क्या करना है सीखो, क्योंकि बस पैसा आ जाता है तो सब ऐसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यंग बच्चे के लिए हमने क्या रूल बनाया था जिससे हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हुई। हमने रूल बनाया, जब भी बच्चा पैदा होता था उसकी फोटो खींचता था, मैं कार्ड बनाता था और सबको लिखता था कॉन्ग्रेचुलेशन नाना, दादा, मामा, चाचा, फिर सबको कार्ड देने जाता था। जब कार्ड पे बच्चे की फोटो देखते थे सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। स्माइल आती थी तो मैं उनको पूछता था बच्चे को कुछ गिफ्ट देंगे, तो लोग बोलते थे जरूर देंगे, गिफ्ट तो देंगे ही। तो मैं बोलता गिफ्ट कभी भी दें तो कार्ड के पीछे पढ़ के आना। तो कार्ड के पीछे हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, इन गिफ्ट वी प्रीफर ओनली कैश। हम गिफ्ट में सिर्फ कैश लेते हैं, टॉय वॉय नहीं लेते, कपड़े वपड़े नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए, हमको कैश चाहिए। कितना? 50,000 रुपए। अगर आपने अपने बच्चा पैदा होने पे, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके नाम पे 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, सबने मिलके, मामा, नाना, चाचा, दादा, सबने मिलके 50,000 इन्वेस्टेड वंस एट 18% पर एनम। बच्चा आज पैदा हुआ है, कितने साल कंपाउंडिंग होने वाली है? 60 साल कंपाउंडिंग होगी उसके रिटायरमेंट तक। एनीबडी वांट्स टू गेस? जब बच्चा 60 साल का होगा, 1 से स्टार्ट किया तो 61 तक, दिस अमाउंट बिकम्स हाउ मच? This amount becomes an astonishing 102 करोड़, 102 करोड़। कितने से स्टार्ट किया था? 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। तो हम तो गवर्नमेंट को बोल बोल के थक गए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया इस साल, ट्रंप ने किया। अभी हम 17 साल से लेक्चर, 15 साल से लेक्चर दे रहा हूं मैं, हर लेक्चर में बता रहे हैं सरकार को कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके फादर मदर को 50,000 का टैक्स ब्रेक दिया जाए, 50,000 उसको इन्वेस्ट करना अलाउ किया जाए। पहले 3 साल खर्चे कम होते हैं, बाद में स्कूल चालू हो जाता है, और 3 साल पे 60 साल का लॉक इन लगा दिया जाए, 3 साल इन्वेस्ट करके। और जो भी पैसा इकट्ठा होगा, बच्चा जब बड़ा होगा ना वो सरकार पे डिपेंडेंट ना सब्सिडी। ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान है। दिस इज द इजीएस्ट सोशल सिक्योरिटी प्लान। चिल्ला चिल्ला के 15 साल से हम दिल्ली में, दिल्ली एकदम गवर्नमेंट के पास, वहां पे आईआईसी में इलेक्शन कर रहे हैं, सब आ रहे हैं गवर्नमेंट वाले लोग, रोज डिस्कशन हो रहा है, करेंगे करेंगे। आज 11 साल हो गए हैं सुनते हुए मेरे को, करेंगे। और ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है लास्ट 5 साल में, उनके नाम पे हम $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं S&P 500 इंडेक्स फंड में। जैसे हमारा निफ्टी है वैसे उनका S&P 500 है। बट ये इससे 102 करोड़ 102 नहीं होंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन विल गो अप। इन्फ्लेशन हर साल कितने % से बढ़ता है? गवर्नमेंट बोलती है 4%, आरबीआई बोलती है 4% ±2। कितने लोगों ने सुना हुआ है? The comfortable range for inflation is 4% ±2। अगर महंगाई 6% से ऊपर होती है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर करके इकोनॉमी को स्लो किया जाता है, 2 से नीचे होती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे करके बढ़ाया जाता है। तो महंगाई मान लेते हैं हर साल कितने % से बढ़ेगी? 6% से। अगर 6% से महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन विल गो अप बाय 32 टाइम्स। मतलब बच्चे के पास 102 करोड़ होंगे, बट बाइंग पावर विल गो डाउन बाय 32 टाइम्स। मतलब उस टाइम पे 102 करोड़ से वो उतना अमीर महसूस करेगा जितना आज आप 3.11 करोड़ पे करते हैं, विच इज नॉट बैड। आज किसी को रिटायरमेंट पे 3 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो अच्छा खासा अमाउंट है। उसके लिए कितने से स्टार्ट करना है? 50,000 रुपए से। एक और एग्जांपल दिया था उन लोगों के लिए जिनके पास वेल्थ क्रिएट हो गई है। एक लास्ट एग्जांपल दे लीजिए, फिर बताऊंगा आज की मार्केट में क्या गड़बड़ हो गई है और क्या ध्यान करना है। एक और एग्जांपल मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं, ये इस पे 1 मिनट बाद आऊंगा। क्या कर सकते हैं जिन लोगों के पास पैसा है? जैसे मैं 43 का हूं, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, तो मैंने लास्ट साल जिंदगी काफी रोज लेक्चर देता था। तो लास्ट 5 साल से मैं सिर्फ संडे काम करता हूं, बस एक दिन काम करता हूं संडे को। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई इज्जत मेरी कम हो रही थी, क्योंकि याद रखिए पैसा आ गया, लेकिन अब मेरे फादर बोल रहे हैं कि तू काम ही नहीं करेगा कुछ,
तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी इज्जत काफी घर में कम हो गई थी, अभी भी कम है। तो अब मैं संडे काम करता हूँ, हर संडे करता हूँ। मेरे फादर मेरे को रोज बोल रहे हैं कि नहीं कर कुछ कर। अब मेरा बचपन से ही सपना था, मैं 11 साल का जब था तो मैंने अपने फादर को एक दिन बोला कि पापा आई एम एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। और मेरे फादर बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला 11 साल का बच्चा बता रहा है कि क्या करने वाला है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला कि क्या सोचा है, क्या करेगा। तो मैंने बोला बस सोचा नहीं, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। उन्होंने बोला क्या, मैंने बोला कुछ नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि स्कूल में वैसे ही मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मैं आराम करना चाहता हूं। तो मेरे फादर ने, मेरे को पता है आराम करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। तो मैंने बोला ये तो मेरे को समझ पड़ रहा था कि आराम करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ पापा वो तो पता है। तो मेरे पापा ने बोला तू बहुत पैसा कमाना, फिर कुछ मत करना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं भी खुश हो गया, मुझे लगा पैसा कमा लेंगे। फिर मैं लोगों से पूछने गया कैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। सब ने बोला अभी तो तुम बच्चे हो, अभी पैसे के बारे में सोचो, पैसे के बारे में सोचो, बड़े होके सोचना, बड़े होके सोचना। जिन्होंने बोला वो आज भी बेचारे बड़े हो गए, अभी भी सोच ही रहे, अभी भी बेचारों का पैसा नहीं बन रहा है। तो मेरे को 11 साल में प्रॉब्लम हो गई कि भाई पैसा आएगा कहां से, क्योंकि करना कुछ नहीं है लाइफ में मेरे को। तो मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करी। मेरे 11 साल के दोस्त ने बेस्ट एडवाइस दी। इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूं, मेरा 12 साल का सन है और मैं उसको हमेशा बोलता हूं कुछ भी लाइफ में पूछना हो तो मेरे से तो मत ही पूछना, क्योंकि ये हम सबसे लो कैटेगरी के लोग होते हैं। 40 के ऊपर एक बार आप हो जाओ ना, आपका दिमाग ही बंद हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब खत्म हो चुकी है। आप बस एक ही चीज, आप एक्सपर्ट हैं एक चीज में, कमी निकालने में, कि ये गड़बड़ है। मैं भी अपने बच्चों को बोलता अरे क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरे को 11 साल के दोस्त ने बेस्ट एडवाइस दी थी, आज तक मुझे लगता है उससे बढ़िया एडवाइस मेरे को लाइफ में किसी ने नहीं दी। मेरे 11 साल के दोस्त ने मेरे को बोला अगर तेरे को पैसा कमाना है ना तो बहुत सिंपल है, तू उनके बारे में पढ़ जो पैसा कमा चुके हैं। तो मैंने पढ़ना चालू किया, रीडिंग की हैबिट मेरी वहां स्टार्ट हुई। मैंने पढ़ते गया, मेरे को लगा कोई तो बताएगा पैसा कैसे कमाना है। पहला बंदा पढ़ा एंड्रयू कार्नेगी, उसका पता लगा कि वो स्टील मैग्नेट है, भाई स्टील में उसने बहुत पैसा कमाया। तो उसने अपनी किताब पढ़ना स्टार्ट की, उस किताब में पहला लाइन थी, मैंने बचपन से ही मेहनत करना चालू कर दिया था। तो मेरे को लगा ये अपने टाइप का ही नहीं है, ये तो मेहनत की बात कर रहा है। तो मैंने उसको छोड़ा, फिर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, सब मेहनत की बात कर रहे थे। लास्ट में आई वाज लूजिंग होप। लास्ट में मैंने किताब पढ़ी, वॉरेन बफेट का इंटरव्यू था उसमें, वो बिलियनर बने थे तब। तो उन्होंने पहला सेंटेंस बोला हमारे काम में करना कुछ नहीं पड़ता। तब मेरे को लगा ये अपने टाइप का आदमी है। वहां से मेरी वॉरेन बफेट का जो लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, आप मुझे कई लोग बोलते हैं कभी वॉरेन बफेट को मिले हो, तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूं इवन दो आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, नॉट वेरी नहीं, मैं रिलीजियस ही नहीं हूं, आई एम नॉट अ बिलीवर, मेरा कोई गॉड से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे डिवोट, मतलब ऐसे लोग हैं कि लोग कसमें खाते हैं। तो मैं उनको कई बार समझाता हूं राधा का कृष्ण के लिए जो प्यार था वो मिलने से नहीं था कुछ, वैसे ही वॉरेन बफेट के लिए हमारे मन में क्या है आप में से कई लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को ऐसे लगता रहता है कि मिले हैं कि नहीं मिले, कोई मतलब ही नहीं है, हमारा लेवल ही अलग चले गया है प्यार का। लेकिन वहां पर मुझे समझ पड़ा कि लाइफ में करना क्या होता है, पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है। और उस बंदे ने समझाना स्टार्ट किया काम कुछ नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं। तो जब मैंने वॉरेन बफेट पढ़ा तो एक दिन मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, मैं बचपन में बहुत टेबल टेनिस खेलता था। तो मेरी मदर ने बोला क्या दिन भर टेबल टेनिस, कोई काम करता, काम क्यों नहीं करता। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप चिंता मत करो, मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूं, इंडिया के टॉप 50 सीईओज को मैंने हायर कर रखा है। मैंने निफ्टी खरीदा है, निफ्टी खरीदा तो टॉप 50 सीईओज को हायर कर रखा है, सब ऑफिस में काम कर रहे हैं। 2.5 लाख टीसीएस के एम्प्लॉइज जब ऑफिस में रोज अपना टच करते हैं, टच स्क्रीन पे टच करके अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, रिपोर्ट किसको करते हैं, मेरे को। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा चिंता मत करो। एक दिन मेरी मदर मेरे को कुछ काम दे रही थी, तो मेरी मतलब आज का क्या प्रोग्राम है, तब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने अपनी मदर को बोला आज वाजपेयी को मीटिंग के लिए भेजा है। तो मेरी मदर ने बोला मतलब, मैंने बोला जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करने जाता है तो क्यों जाता है बता सकते हैं, मोदी जी इतना घूम रहे हैं हमारे पैसे पे, क्यों घूम रहे हैं, ऑर्डर लेके आएंगे भाई, इसलिए तो दिया है। तो मेरी मदर मेरे को बोलती है तुमको पता है ये प्रधानमंत्री बहुत मेहनती हैं, बहुत 24 घंटे काम करते हैं। मेरी मदर बहुत बड़ी फैन है। तो मैंने बोला मैं रखा ही इसलिए, उनको नहीं करेंगे तो निकाल ही देंगे हम। तो इन्वेस्टर सबसे ऊंचा होता है, ये बाकी सब आते जाते रहेंगे सर, इन्वेस्टर ही मेन है आदमी, बाकी सब ये 4 तरीके के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। सबसे ऊंची कैटेगरी के हम ही बैठे हुए हैं, आप सब हमारे लिए काम करते हैं, आपको बस पता नहीं लग रहा है। आरबीआई गवर्नर भी काम करता है तो किसके लिए करता है, हमारे लिए करता है, सब हमारे लिए कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल है। जिस दिन आपको ये समझ पड़ेगा तब आपको समझ पड़ेगा कि वेल्थ क्रिएशन कैसे स्टार्ट होती है बफेट के केस में। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं यंग जो ओल्ड लोग हैं जो 40s 50s में हैं तो वो कैसे प्लान करें। जैसे अगर समझिए मैं 40 साल का हूं, 40 की एज में मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो देखिए मैंने कैसे किया। समझिए मेरे को 1 करोड़ का कॉर्पस मिल गया
सबके नंबर अलग अलग, जिसके 10 करोड़ 100 करोड़ अपने नंबर ऊपर ऊपर करते जाइए, ऊपर नीचे जैसे भी। 1 करोड़ मेरे पास अमाउंट है, इस अमाउंट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा? एक जिसमें मेरा पैसा क्या रहेगा, सिक्योर, क्योंकि मेरे को रेगुलर खर्चे चाहिए। एक जिसमें मेरा पैसा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कितना पैसा सिक्योर चाहिए? तो मैंने आपको पूछा आपको कितने रुपए चाहिए। समझिए आपने बोला मुझे 40,000 रुपए महीना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है, 40 लाख रुपए 1 करोड़ में से कहां डाल दो? बैंक में जैसी जगह पे, एफडी जैसी जगह पे, जहां पे ऊपर नीचे नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया वाले का मूड खराब हो, कोविड का खराब हो, किसी का खराब हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 40,000 हर महीने निकालेंगे। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। मैंने 12 साल अपने क्या कर दिए? एब्सोल्युटली सिक्योर, कुछ भी हो जाए। अब मेरे पास 60 लाख रुपए रह गए। अब 60 लाख रुपए को मैंने ग्रोथ के लिए डाल दिया। 60 लाख रुपए को अगर मैंने ग्रोथ के लिए डाल दिया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर्स, 12 साल। अगर 15% का CAGR मिलता है, प्लानिंग करते हो हम 15 लेते हैं, तो ये नंबर बन जाता है 3 करोड़ रुपए। मेरी एज कितनी हो जाएगी बताइए? 40 से स्टार्ट किया था, 52। फिर 3 करोड़ को 2 हिस्सों में वापस डिवाइड कर दूंगा। अब मेरा महीने का खर्चा पहले 40,000 था, अब कितना हो जाएगा? 80,000 रुपीज, 80,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 80,000 महीना चाहिए, तो कितना डालना पड़ेगा बैंक में? 80 लाख। 40,000 के लिए 40 लाख, 80,000 के लिए 80 लाख। पैसा डबल क्यों कर दिया? क्योंकि महंगाई डबल हो जाएगी। 80 लाख यहां डाल दिया, 2.2 करोड़ बाकी कहां छोड़ दिए बताइए? निफ्टी जैसी जगह पे छोड़ दिए, जो जीरो हो नहीं सकते। 15% पे अगर बढ़ते गए 12 साल के लिए, तो ये 11 करोड़ बन जाएंगे। मेरी एज कितनी हो जाएगी? 64। 64 में फिर से 2 हिस्से डिवाइड कर देंगे। पहले 40,000 था, फिर 80,000, फिर 1.6 लाख। 1.6 करोड़ में कहां रखूंगा? बैंक में। 9.4 करोड़ कहां छोड़ दूंगा? स्टॉक मार्केट में। पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मतलब क्या है इसमें क्या डिबेट क्या है? मतलब कोई डाउट नहीं, कोई डिबेट नहीं। मुझे तो आज तक, जब मैंने बफेट पढ़ा था, तो मुझे तो यही समझ नहीं पड़ा लोगों को क्या समझ नहीं पड़ रहा है। या तो आपने स्कूल में 5वीं ठीक से नहीं की है, भाई स्कूल में मैथमेटिक्स आपका 5वीं का क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 5वीं का ही मैथ्स है, इसमें और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मेरे को समझ पड़ा ये तो पूरी जिंदगी सेटल है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये मैंने किसके लिए बताया? जिनके पास वेल्थ है। अगर वेल्थ है तो 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, वेल्थ नहीं है तो आज से जोड़ना स्टार्ट करिए। हर महीने सेंसेक्स निफ्टी में डालिए। जब वेल्थ बन जाए, वेल्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करके रिटायरमेंट कर लीजिए। अब आप में से कई लोग आएंगे जो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वरुण ने तो बहुत ही सिंपल कर दिया, अब हम पढ़े लिखे हैं तो इतना सिंपल कैसे ले लें? भाई सिंपल तो चीज उसी को अच्छी लगती है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। IIT वाले को अगर आप ये बता देंगे, मेरे फादर को मैंने बताया कि पापा बस सेंसेक्स निफ्टी ले लो, तो IIT वाले दिल पे ले लेते हैं। वो बोलते हैं क्या बात कर, हम IIT से पढ़ के भी इंडेक्स ही लेंगे, बस हम दिमाग नहीं लगाएंगे। IIT वालों को ऐसे गलतफहमी है कि उनको कुछ आता है। ऐसे होती है, कई लोगों को होती है, काफी दुनिया में काफी लोगों को होती है, सबको ही होती है, मतलब IIM वालों को भी होती है, सबको होती है। तो यह वॉरेन बफेट का कोट पढ़ लीजिए। जो भी लोग सोच रहे हैं नहीं मैं निफ्टी नहीं, मैं ये ले लेता हूं, मैं निफ्टी नहीं ये ले लेता हूं, अभी किसने बोला मैं ऐसा कर रहा हूं, अच्छा अभी किसने बोला ऐसा करो गोल्ड भी ले लो, ऐसा करो रियल एस्टेट भी ले लो, ऐसा करो फिर तुम हेज फंड भी ले लो, ऐसा करो तुम ये भी ले लो, तो पूरा डाइवर्स कर दो। तो एक सिंपल सा रूल है, एक होता है डाइवर्स, और जब ज्यादा डाइवर्स करते हैं तो हो जाता है वर्स। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं डाइवर्स। याद रखिए वॉरेन बफेट का एक कोट है, डाइवर्सिफाई 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 एंड ओनली फूल्स डाइवर्सिफाई। कौन डाइवर्सिफाई करते हैं? जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता वो बोल रहा है ऐसा करो सब कुछ खरीद लो। अरे सामने बोला सर सब कुछ क्यों खरीद लो जब सब कुछ अच्छा नहीं है? जब अच्छा निफ्टी है तो निफ्टी खरीदो ना, बाकी क्या खरीदना है? तो लोगों ने बस निफ्टी खरीदो। तो वॉरेन बफेट सर ने कोट बता दिया, बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी 50 में पीरियोडिकली मतलब क्या करेंगे? SIP। By periodically investing in an index fund, the know nothing investor can actually outperform most investment professionals. मतलब ये IIM के जो पढ़े लिखे लोग जो फंड चला रहे हैं उनसे बेटर करेंगे आप अगर आप निफ्टी खरीद लेते हैं तो। मतलब पैसा नहीं देना है किसी को, टैक्स नहीं देना है, दिमाग नहीं लगाना है, एडवाइजर नहीं चाहिए, और करने भी क्या वाले हैं? बेटर। तो लोगों ने बोला क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा बेटर कर देंगे। तो ये लीजिए आपके लिए हिस्टोरिकल डेटा दिखा देता हूं, वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से डेटा निकाला है, निफ्टी की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो ये लीजिए लास्ट 1 ईयर में ये निफ्टी 20, निफ्टी 50 मतलब निफ्टी खरीदने का एक तरीका है। तो निफ्टी 50 अगर आपने खरीदा है तो क्या है, और नंबर ऑफ फंड्स इन द कैटेगरी, नंबर ऑफ फंड्स इन द कैटेगरी मतलब अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो यू विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट? द लार्ज कैप कैटेगरी। तो हियर इट इज, लास्ट 1 ईयर में 144 अगर म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में 144, और अगर आपने निफ्टी खरीदा है तो आपका रैंक क्या है बताइए जरा? 8वां।
समझिए अगर मैं आपको सारे म्यूचुअल फंड के साथ बंद कर दूं रूम में और बोलूं आप सबका कंपटीशन है, चलो कंपीट करो, कौन अच्छा फंड मैनेजर है, आप तो हाथी खड़े कर देंगे। आप बोलेंगे वरुण मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इन्वेस्टिंग का, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो मैं आपको चुपके से बोलूंगा सर अगर आप रूम में घुस गए हो ना, उस रूम में रहो जहां पे सारे दुनिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, आप बस निफ्टी खरीद लो। अगर आपने निफ्टी खरीद लिया 144 में से आपका रैंक क्या होगा? सोच सकते हैं क्या बड़ी बात है ये? 8वां रैंक कमाने के पढ़े लिखे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं, बेस्ट लोगों के साथ 8वां रैंक। आगे की कहानी देखिए, 3 साल में 121 में से 59, 5 साल में 97 में से 32, 7 साल में 17 में से 12, 10 साल में 59 में से 30। आपने नोटिस किया ये नीचे का नंबर कम होते जा रहा है, कंपेयर करने का नंबर कम हो रहा है। पहले 140, 150, 144 फंड्स, 121, 97, 70, 59। बता सकते हैं कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कई फंड्स इतना खराब कर रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह जाते। जो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते वो बंद हो जाते हैं, मतलब वो बंद हो जाते हैं, उनको किसी का मर्ज कर दिया जाता है। जो मुंह दिखाने लायक 59 रह गए हैं, 59 जो मुंह दिखाने लायक रह गए हैं, लास्ट 10 साल में आपका रैंक क्या है? 13th। मतलब अगर आपको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट करना है तो बस निफ्टी खरीदना है। तो पहले अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने ये किया है। अगर आपके मन में आया लेकिन पहले 12 भी तो हैं, तो याद रखिए 12 जो हैं वो समझदार नहीं है। उसके लिए फोर्ब्स का आर्टिकल है, एनी मंकी कैन बीट द मार्केट्स। एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक मंकी को बोला गया, मंकीज को जू से बुलाया गया, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर दिए गए, उन्होंने डांट लगाए, जो उन्होंने जहां जहां जिन जिन स्टॉक पे डांट लगाए उन स्टॉक्स को खरीदा गया। मंकीज ने एक्चुअली फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया है। तो इसका मतलब आप क्या ये मंकी को पैसा दे देंगे अपना? इसका मतलब क्या है? लकी होते हैं। अगर 500 लोगों को बोलूंगा हेड्स लेके आओ तो कितने लोगों का हेड्स आ जाएगा? 250 का। तो 250 को सिक्का उछालना आता है क्या? नहीं। अब जो 250 हार गए उनको बाहर निकाल दिया, जो 250 जीत गए उनको बोला टेल्स लेके आओ, कितने लोगों का टेल्स आ जाएगा? 125, फिर 60, फिर 30, फिर 15, लास्ट में जो 15 लगातार राइट ला रहे हैं उनको क्या अभी शुभमन गिल के साथ टेस्ट मैच के लिए भेज दिया जाए टॉस करने के लिए? उनको कोई सिक्का उछालना आता है? नहीं, ये लक है। इसलिए बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपना निफ्टी लीजिए और काम खत्म। किसी से कल से कोई बात ही नहीं करनी क्या लेना है क्या नहीं लेना। अब आ जाते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या हो गई है। निफ्टी की तो मैंने आपको बता दी, लंबे समय निफ्टी बढ़ता ही रहेगा, वन टाइम मत करिएगा क्योंकि पीक पे इन्वेस्ट करते हो गड़बड़ हो जाती है। अब मार्केट महंगी है या सस्ती है, यह कैसे पता लगाएं? 5 मिनट में यह समझते हैं। तो क्योंकि मेरे को पहले मुझे यही करना था आज, लेकिन मैंने पहले का रिवाइज किया तो मेरा टाइम कम है, तो मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि मैथमेटिकल है जो मैं दिखाने वाला हूं, है 5वीं का ही मैथ्स, लेकिन उसमें डेटा बहुत है, तो मैं कोशिश करूंगा डिटेल में समझा पाऊं। अगर नहीं समझा पाया तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब मैं जानना चाहता हूं कि मार्केट महंगी है या सस्ती। तो एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर, मार्केट कैप बाय जीडीपी। ये डेटा क्या बोलता है? अगर इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में $4 ट्रिलियन होनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी और स्टॉक मार्केट आपस में क्या है? कोरिलेटेड है। जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतनी ही स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। क्यों? ध्यान से सुन लीजिए। जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर जीडीपी बढ़ रही है इट मींस कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग मोर। अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों का कोरिलेशन क्या है? 1। कभी कभी स्टॉक मार्केट इंटरेस्टिंग कब हो जाती है? जब मार्केट में लोग बीच बीच में क्या हो जाते हैं? ग्रीडी हो जाते हैं। बहुत ये स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या? बीच बीच में ग्रीड और फियर आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं अब तो तू देख इंडिया नंबर 1। मतलब मुझे तो टीवी वालों का समझ नहीं पड़ता, लोग बोल रहे हैं इंडिया नंबर 1। आपका कंपैरिजन घाना के साथ चलता है सर, मतलब लिटरली घाना के साथ चलता है, और आप बोल रहे हैं इंडिया नंबर 1। मुझे तो समझ नहीं पड़ा। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, आप 130 करोड़ लोग हैं सर। मतलब ये वैसी वाली बात है, मेरे जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, मेरी एक फ्रेंड है लड़की, उसके 100 मार्क्स है, 100% आए हैं। तो 3 दोस्तों ने बोला हमारे 101 आए हैं। तो लोगों ने बोला कैसे? बोले एक के 50, दूसरे के 50, तीसरे के 1, 101। तो आप 50% पे ही हैं सर, आप फेल हो चुके हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी घाना और ये कहां नाइजीरिया, आप बोल रहे हैं हम नंबर 1 बन गए हैं क्या? अब अनफॉर्चुनेटली आपके पास 120 करोड़ लोग हैं तो आपकी जीडीपी बड़ी दिख रही है। हाँ, जीडीपी बड़े होने के बहुत फायदे होते हैं कि आपकी डिफेंस का बजट बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें सुपर पावर बन जाएंगे आप, क्योंकि अगर हम 500 बिलियन खर्च कर सकते हैं डिफेंस पे, दूसरी कोई कंट्री खर्च ही नहीं कर सकती, इतना पैसा ही नहीं है। तो बड़ी इकोनॉमी के बहुत फायदे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी एक अफ्रीकन जिंदगी के बराबर ही है।
आपको एक गलतफहमी दी जा रही है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई है। आप थोड़े से लोग यहाँ पे पार्क में बैठ के बोल रहे हैं हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है, कुछ नहीं हुई है। पर कैपिटा इनकम आपकी एकदम लिटरली अफगानिस्तान पे, ये अफ्रीका के आसपास चल रही है। बट लेकिन यहां पर हम समझते हैं कि कभी कभी जब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो देखो इंडिया नंबर 1। तो क्या होता है, लोग फ्यूचर की ग्रोथ को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रीमियम पे कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू हो जाती है 6 ट्रिलियन, जीडीपी अभी कितनी है 4 ट्रिलियन। जब ऐसा हो जाए तो रेशो कितनी हो जाती है 1.5। जब रेशो 1.5 हो जाए मतलब मार्केट जीडीपी से कहां निकल गई है, आगे। ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि जीडीपी से ही ट्रैक करना है। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, फियर में, कोविड में जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर, स्टॉक मार्केट की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर, ये रेशियो 0.5 आ जाती है तो मार्केट फंडामेंटल से क्या हो गई है पीछे, मतलब मार्केट क्या हो गई सस्ती। आज अगर इंडिया की मार्केट कैप बाय जीडीपी देखें, क्योंकि 0.5 है आज, तो क्या करना चाहिए, अगर आज चल रही है 0.5 तो क्या करना चाहिए, क्लास बाद में, पहले जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। और 1.5 है तो महंगी है। आज इंडिया की मार्केट कैप बाय जीडीपी करीब करीब 1.2 1.3 चल रही है, 1.2 1.3। तो एक्चुअली मार्केट कोई सस्ती वस्ती नहीं है, ठीक है, बहुत महंगी भी नहीं हॉरिबली, लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्ती है। तो लोगों ने बोला ठीक है 1.2 1.3 मतलब थोड़ा पता लग गया, थोड़ी फेयर से ऊपर है। लेकिन एक और तरीका होता है मार्केट को वैल्यू करने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें मैथमेटिक्स आएगी, 5-10 मिनट का टॉपिक लेंगे, कंसंट्रेशन जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं P by E रेशियो। P by E रेशियो का मतलब क्या है, प्राइस बाय अर्निंग। मतलब जैसे अगर मुझे निफ्टी की P रेशियो निकालनी है तो प्राइस ऑफ ऑल निफ्टी 50 कंपनीज, अच्छा इस पे यस जरूर करते रहिएगा, मुझे समझ पड़ेगा, कितनों को समझ पड़ गया तो मैं फास्टर जा सकता हूं, यस नो करते रहिएगा। P by E रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग, सारी निफ्टी की कंपनीज का प्राइस और सारी निफ्टी की कंपनीज की कितना है प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्राइस बाय अर्निंग, ये क्या बताता है, P रेशियो बताता है। एवरीबडी विद मी, यस यस। P रेशियो इस टाइम पे इंडिया की कैसे निकालेंगे, निफ्टी की, प्राइस ऑफ निफ्टी इज 25,000 समवेयर, आज निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, डिवाइडेड बाय निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग, इसको डिवाइड करके जो भी अर्निंग होगी उस रेशियो में, जैसे एचडीएफसी का वेटेज 13% है तो एचडीएफसी के प्रॉफिट का 13 लेंगे, रिलायंस का 10 लेंगे, उस रेशियो में बना के आज सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो चल रही है 22.96। इसका मतलब क्या है, प्राइस बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो। आपने नोटिस किया, वैसे तो अर्निंग देनी चाहिए थी, अर्निंग कोई देता नहीं है, लेकिन हम अर्निंग उल्टी निकाल सकते हैं। बता सकता है कोई अर्निंग कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये पता है तो अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। सब मेरे साथ हैं इसमें, इज एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? तो हम अर्निंग निकाल सकते हैं। तो अर्निंग निकालने के लिए अगर मुझे निकालनी है तो ऐसा कुछ होगा, ये लिखिए, तो प्राइस बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो। अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट, अर्निंग को मैं ऊपर ले गया, इधर से इधर ले गया, निफ्टी 50 का प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो क्या आ जाएगी अर्निंग। आज निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग कितनी चल रही है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इतनी चल रही है 113। याद करिए, यूनिट है बस, ये करोड़ में नहीं है, यूनिट है एक, 113 का यूनिट याद रखिए, इतनी निफ्टी की क्या चल रही है, अर्निंग चल रही है। लेकिन मैंने आपको बताया निफ्टी की पी रेशियो 22.96 चल रही है। क्या मैं 22.96 को लिख सकता हूं 22.96 बाय 1? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? इस 1 को लिखने का मतलब क्या है, एक बार बताइए। मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 रुपए का निफ्टी की कंपनीज का प्रॉफिट कमाने के लिए आज आपको कितने रुपए भरने पड़ रहे हैं, 22.96 भरने पड़ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन ये है कि अगर 1 रुपए के लिए मुझे 22 रुपए भरने पड़ रहे हैं तो क्या ये महंगा है या सस्ता है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या ये महंगा है या ये सस्ता है, क्या है ये? तो इसको कंपेयर कर देंगे हम। कंपेयर किससे करेंगे, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, बताइए एक आम आदमी के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बैंक एफडी। बैंक एफडी की पी रेशियो कैसे निकालेंगे बता सकते हैं? ये लीजिए, बैंक एफडी की पी रेशियो क्या आप पता करना है, प्राइस, प्राइस मतलब क्या, जो मैं डिपॉजिट जमा कर रहा हूं बैंक में, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, जो मेरा इंटरेस्ट आएगा। बताइए आजकल बैंक एफडी में अगर मैं 100 रुपए रखता हूं तो ऑन एन एवरेज कितने रुपए मिलता है मुझे साल के एंड में? ये बोल सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 6.5, करीब करीब 6.5 के आसपास। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से भी निकाल सकते हैं कि सरकारी बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं 10 साल के लिए तो 6.5% के आसपास आता है। तो कितने लोगों को समझ पड़ा, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर करीब करीब आएगा 15 के आसपास। इसका मतलब बता दीजिए, 15 बाय 1 का मतलब बताइए, सब लोग बताइए एक बार बोल के, 15 बाय 1, बैंक की पी रेशियो 15 बाय 1 है, इसका मतलब बताइए।
1 रुपया रिस्क फ्री कमाने के लिए, रिस्क फ्री 1 रुपया इंटरेस्ट के फॉर्म में कमाने के लिए आपको 15 रुपया भरना पड़ता है, और सेंसेक्स निफ्टी का 1 रुपया कमाने के लिए कितना भरना पड़ता है, नंबर बोल दीजिए, 22 रुपए भरना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, ये कोई बड़ी बात क्यों नहीं है, नॉर्मल बात है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसका 1 रुपया फ्यूचर में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, हमेशा 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया मिलेगा। इस कंपनीज का 1 रुपया फ्यूचर में क्या होने वाला है, पक्का ग्रो करेगा। बताइए पक्का क्यों करेगा? बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ, दे विल कंज्यूम मोर, तो ये बढ़ने वाला है। जिस चीज का, अगर 2 घर हैं, इसका रेंट भी 1 रुपया है, इस घर का रेंट भी 1 रुपया है, इस घर का रेंट कभी नहीं बढ़ने वाला, इस घर का रेंट बढ़ने वाला है। अगर ये घर 15 लाख का है तो ये घर कितने का होगा, 15 से ज्यादा का ही होगा। तो इसका मतलब जो चीज की अर्निंग बढ़ने वाली है उसकी पी रेशियो भी बैंक से क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। तो 22-19 कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी मार्केट जब फियर में आ जाती है तो क्या हो जाता है, सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो 15 आ जाती है। मतलब बैंक में 15 लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, सेम टाइम पे सेंसेक्स में भी 15 लगा के कितने मिल रहे हैं। अगर सेंसेक्स में 15 लगा के 1 मिल रहे हैं, बैंक में 15 लगा के 1 मिल रहे हैं, बैंक का 1 रुपया क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसका 1 रुपया क्या होने वाला है। तो क्या करना चाहिए, सेंसेक्स निफ्टी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। लेकिन पता कैसे लगेगा कि दुनिया फियरफुल है, बताइए कैसे पता लगेगा दुनिया फियर में है। अगर सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो बैंक पी रेशियो के बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या है, मार्केट किसमें है, फियर में है। तो आपको क्या करना है, हिम्मत करनी है कि हाँ फियर तो आपको भी लग रहा होगा, बॉम्ब गिर रहे होंगे, मतलब मिसाइल चल रही होगी, आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मिसाइल गिर रही होगी, लेकिन आपको बोलना है नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी सेंसेक्स निफ्टी के 1 रुपए के लिए लोग 30 रुपए भरना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी 1 रुपए के 15, और कभी कभी बैंक में 1 रुपए 15 मिल रहा है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के 1 रुपए के लिए लोग कितना भरते हैं, 30। बताइए 30 क्यों भरते हैं लोग, जब बैंक में 1 रुपए के लिए 15 भरने पड़ रहे हैं? क्योंकि लोग फ्यूचर को लेके बहुत क्या हो गए हैं, बहुत ग्रीडी हो गए हैं। जानना चाहते थे मार्केट ग्रीडी कब है, तो मैंने बता दिया 30 की पी रेशियो है। तो पी रेशियो की एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मिसलीड करती है, बहुत रेयरली करती है। अगर मेरे पास 2 मिनट होगा मैं बताऊंगा, वरना छोड़ दीजिए अभी। कभी कभी मिसलीड करती है, बट पी रेशियो अगर 30 चल रही है मतलब मार्केट ग्रीडी है, महंगी है, 15 चल रही है मतलब मार्केट सस्ती है। और आज सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो 15 और 30 के बीच में चल रही है, 22। तो बताइए निफ्टी क्या ग्रीडी चल रही है आजकल? नहीं। क्या निफ्टी आजकल फियरफुल चल रही है? नहीं। निफ्टी आजकल रैशनल चल रही है, समझदार है। भाई मार्केट समझदार है, सबको पता है जिसकी ग्रोथ होने वाली उसकी प्रीमियम क्या होनी चाहिए, ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो निफ्टी तो ठीक दिख रही है। अब क्वेश्चन यह आना चाहिए कि अगर निफ्टी ठीक ठाक दिख रही है, अच्छा बताइए निफ्टी पहले 30 जाएगी या पहले 15 जाएगी? बताइए पहले 30 जाएगी या 15? कोई भी आपको पूछे, मेरे को तो लोग बहुत पूछते हैं क्या होगा, तो आपको जवाब देना है हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बताता है क्या होने वाला है, हम बताते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर का मतलब समझते हैं, हम वैल्यू करते हैं। 15 पे है मतलब ये सस्ता है, मैं ये बता सकता हूं। 30 पे है मतलब ये महंगा है, बता सकता हूं, वैल्यू किया है मैंने। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कहां जाएगी। तो फेयर है लेकिन मार्केट, निफ्टी फेयर है। लेकिन अगर निफ्टी फेयर है तो मार्केट कैप बाय जीडीपी भी फेयर होनी चाहिए थी। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर निफ्टी फेयर है तो मार्केट कैप बाय जीडीपी 1 के आसपास होनी चाहिए थी। तो मार्केट कैप बाय 1.2 1.3 क्यों है? क्योंकि निफ्टी के अलावा मार्केट में और स्पेस है जहां पे गड़बड़ शुरू हो गई है। और वो गड़बड़ आती है कहां पे? हियर इट इज, पी रेशियो ऑफ स्मॉल कैप 250। जैसे निफ्टी होता है 50, फिर एक नेक्स्ट 50 होता है, नेक्स्ट 50 कंपनीज, फिर आती है मिड कैप 150। कितने लोग समझते हैं मिड कैप 150 मतलब 150 की बास्केट? फिर आती है स्मॉल कैप 250। अब देखिए अब आपकी इंटरेस्टिंग बातें शुरू होंगी। पहले तो मुझे बताइए आजकल आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप में कि मिड कैप स्मॉल कैप में? दोस्त कहां बोल रहे हैं करने के लिए इन्वेस्ट? सब लोग के दोस्त क्लियर होने चाहिए। अगर सबके दोस्त मिड कैप स्मॉल कैप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीड है, ग्रीड दिखेगी आपको, मैथमेटिकली दिखेगी। तो देखिए स्मॉल कैप 250 की पी रेशियो चल रही है, हियर इट इज 33 लगा के 1 रुपया मिल रहा है। मिड स्मॉल कैप 50, मैंने 250 के अलावा 50 मतलब इस 250 में से पहले 50 कौन से होंगे? उन 50 की कितनी चल रही है? 34, नियरली सेम ही है। कितने लोग समझ रहे हैं ये और ये में कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही बात है। मिड कैप 150 इंडेक्स चल रही है 34, मिड कैप उसमें से टॉप 50 की चल रही है 40। तो आपको दिख गया है कि मार्केट में गड़बड़ कहां है। अब आर्ग्यूमेंट देखिए,
अब आपके दोस्त क्या बोलेंगे, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशो अगर 22 है तो स्मॉल कैप की मिड कैप की थोड़ी ज्यादा होनी ही चाहिए। बताइए क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें ग्रोथ भी क्या होती है, ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, आपको कोई अगर बोले कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे एक चीज समझ पड़ी कि ह्यूमन बीइंग्स ना लॉजिक बहुत कम लगाते हैं, अपने ऐसे एग्री बहुत जल्दी करते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं थोड़ा अलग बेंट ऑफ माइंड का हूं। जैसे मेरे केस में क्या है, अगर आप मुझे कुछ भी बोलेंगे तो बोलूंगा प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम होती है, लॉजिक 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 लॉजिक। लेकिन मैं देखता हूं आधे लोग ना मान जाते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की अर्निंग फास्टर ग्रो करती है? कितने लोग मानते हैं? मैं गारंटी दे रहा हूं सब मानते हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे वो भी मानते हैं। अरे सबको ही पता है होती है। आपने कभी कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि होती है कि नहीं? कभी कैलकुलेट किया है? मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आपको आंखें खुल जाएंगी आपकी। मतलब आपको समझ पड़ेगा कि जो टीवी पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं वो इतने डम हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? दुनिया में इतनी डमनेस हो सकती है कि, और कॉन्फिडेंस से आके लोग डम है अलग बात है, डम के साथ कॉन्फिडेंट भी हैं कि टीवी पे आके बता भी रहे हैं कि होती है। तो ये देखिए डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसे निकालेंगे बताइए? अर्निंग कैसे निकालेंगे बताइए? अगर मुझे पता है, प्राइस पता है, अर्निंग पता है, पी रेशो है, सबको पता है, मैं अर्निंग निकाल सकता हूं। अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट? प्राइस बाय पी रेशो। एक बार सब यस कर दीजिए, ये इक्वेशन क्लियर है? तो अब मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स सबकी ग्रोथ दिखा रहा हूं। ये लीजिए, यहां पे मैंने कैलकुलेट की है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की डेट डाली है कल मैंने, थर्सडे की। एक साल पहले कहां तक गया हूं? 2002 तक गया हूं। इज एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? हर एक डेट ली, 26 जून लिया मैंने, 26 जून हर ईयर का। उस दिन की मैंने क्या नोट कर लिया? प्राइस। ये डेटा मिल जाएगा मेरे को, ये डेटा इंटरनेट पे मिल जाएगा। उस दिन की पी रेशो मिल जाएगी, ये डेटा मिल जाएगा। अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगी? अर्निंग। अब देखिए 2002 में निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग चल रही थी 67 से आज अर्निंग कितनी हो गई है? 112। कितने लोग समझ गए? प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। प्राइस से निफ्टी क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी है, बस यही है। और क्या है? कुछ पी रेशो का भी इफेक्ट है। देख लीजिए 15 की पी रेशो कहां गई है? 22 की। तो थोड़ा पी की वजह से भी क्या हुआ है? मार्केट थोड़ी बड़ी है। लेकिन लंबे समय में पी का इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल। ज्यादा इफेक्ट किसका है? सब अर्निंग का है। तो अर्निंग 67 से इतनी हो गई है। तो ऑन एन एवरेज ईयर की ग्रोथ निकाल सकता हूं। अगर मैं सालाना ग्रोथ निकालूं तो सालाना ग्रोथ जो आ रही है वो करीब करीब आएगी 14-15% पर एनम। ये लीजिए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। कितने साल हो गए 2002 से? कितने साल हो गए 2002 से? 23 साल, राइट? इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 23, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू 67, एंडिंग वैल्यू जो है वो 1113 है। तो अर्निंग्स हर साल कितने परसेंट से बढ़ी है? प्लस 1.5-2% का क्या मिला होगा? ऑन एन एवरेज अर्निंग कितने परसेंट से बढ़ती है? 15% से। क्यों बढ़ती है वो भी बता दूं एक बार, जल्दी से सुन लीजिए एग्जैक्टली क्यों बढ़ती है। जीडीपी हर साल कितने परसेंट से बढ़ती है? 6-7-8% से। ये रियल ग्रोथ होती है। लेकिन साथ में इन्फ्लेशन होता है 6% का। तो 7 + 6 कितना हो गया? 13। क्योंकि 7 + 6, 8 + 6 13-14 होता है। और जीडीपी 13-14% से बढ़ती है, 6-7% में रियल टर्म्स में, और 6-7% किसमें बढ़ती है? इन्फ्लेशन में। दोनों मिला के कितने परसेंट से बढ़ता है? 13। इसी वजह से ये बढ़ रहा है। बस 2 मिनट लूंगा सर, आई विल फिनिश इट, बस एग्जैक्टली 2 मिनट्स। तो हमने बोला ये बेसिकली 13% से बढ़ती है, राइट? अब ये 13% से बढ़ी है प्लस 1.5% डिविडेंड। अब देख लीजिए ये कितने परसेंट से बढ़ा है? मिड कैप। मिड कैप की अर्निंग जो है वो थी 2006 का ही डेटा, उससे पहले का डेटा नहीं है। 2006 में 97 थी, आज कितनी चल रही है? 416। कितने सालों में एक बार बता दीजिए? 2006 से करूं तो कितने साल हो गए? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में 97 से कितनी हो गई? 416। तो ये लीजिए इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 19 ईयर्स, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू 97, एंडिंग वैल्यू 416। इसकी ग्रोथ कितने से हुई है? कौन आपको बोल रहा है कि मिड कैप की ज्यादा होती है? दिखा रहा हूं मैं तो आपको। उल्टा क्या हो रहा है कि मिड कैप के 1 रुपए के लिए आप 40 रुपए भर रहे हैं, निफ्टी के 1 रुपए के लिए 22 रुपए भर रहे हैं, और निफ्टी का 1 रुपया 13% से बढ़ रहा है, और मिड कैप का 1 रुपया 8 रुपए से बढ़ रहा है, और उसके लिए भी आप क्या पे कर रहे हैं? ज्यादा। अब स्मॉल कैप ले लीजिए। स्मॉल कैप का जब डेटा देखेंगे तो और घर आ जाएंगे आप। स्मॉल कैप का जब डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा स्मॉल कैप में 2011 में अर्निंग थी 259, आज अर्निंग है 570। आप नोटिस कर रहे हैं इसकी अर्निंग क्या होती है? बुरी तरह ऊपर नीचे होती है, एकदम ऊपर नीचे होती है, कोई किसी के हाथ में नहीं आता।
लेकिन लास्ट कुछ सालों में क्योंकि ग्रोथ हुई है तो लोग ये मानने लग गए हैं कि क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसी को बोलते हैं, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, लास्ट सेंटेंस पे दिखा के कोट कर रहा हूं, ये ग्रोथ हो रही है 5-6% पे। और वॉरेन बफेट बार बार ये बोलते हैं, आई विल टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, क्लोज द डोर्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और इस टाइम पे मार्केट में जो एक्सट्रीम ग्रीड है वो स्मॉल कैप मिड कैप में जा चुकी है। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे मेरे को ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ भी गई और पी रेशो 30 से गिर के 20 आ गई तो एक्चुअली आपका प्राइस जो है वो 30 से 20, 30-40% कब गिर जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। या हो सकता है मार्केट 4-5 साल के लिए यहीं रह जाए, अर्निंग बढ़ते रहे लेकिन पी रेशो गिरते रहे तो मार्केट वहीं की वहीं रह जाए। तो ये मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में गड़बड़ है। निफ्टी मुझे लगता है इट इज वेरी क्लियर कि अगले 5 साल में निफ्टी शुड डू बेटर देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो आई थिंक दैट वाज द सेशन। और सेंसेक्स निफ्टी कैसे लेते हैं उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर आपको सेंसेक्स निफ्टी लेना है तो कैसे लेते हैं, मैंने पहले जो सेशन किया हुआ है यहाँ पे उसमें मैंने बताया हुआ है सेंसेक्स निफ्टी कैसे लेते हैं। बट अगर किसी को नहीं पता है तो ये इसको आप ले सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। निफ्टी फंड आते हैं, वो आपका पैसा लेके निफ्टी के 50 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंपनीज का वेटेज चेंज होती है वही चेंज करते हैं, कोई दिमाग नहीं लगता, कोई नॉलेज नहीं, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। डायरेक्ट प्लान लेना है, ग्रोथ प्लान लेना है एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको जिंदगी में और कुछ पूछने की किसी को जरूरत नहीं है। बट 5 साल का पैसा कभी स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। तो सॉरी, टाइम मेरे पास बहुत कम था, वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, but the only message that I was trying to give apart from what I have done earlier in the session, जब मैं कोलकाता आया हूं, निफ्टी लेना है वो चेंज नहीं होता है। बट एक चीज बता रहा हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गड़बड़ जो है वो शुरू हो गई है। अब कई लोग पूछेंगे खत्म कब होगी, तो आंसर बताइए क्या है इसका। एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं हम तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, वैल्यू करके आपको बता रहे हैं गड़बड़ है। ये मत बताइए, बोलिएगा कि बाद में गड़बड़ हो जाए तो बताया नहीं था, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक आई हैव टेकन मच मोर टाइम देन आई वाज allotted. Thank you, Varun ji. It was a very, very, very nice session. A loud round of applause for him, please. And now, since we have exceeded the time, I will not take much of time. I would like to thank you, thank all the audience, thank ACA, thank all the organizers. And I would also like to invite everyone for a group photo, please. Please come on the stage.